اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم ہم سب کے لیے معاملات کو بہت آسان فرمائے، ثم آمین۔ بہت سارے مسائل ہیں دنیا میں اس وقت ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے بھی ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں، گھریلو بھی ہیں، کیونکہ اصل میں مسئلے کی بنیاد ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بگاڑنا۔ تو جب یہ خرابی آتی ہے تو یہ انڈیویجول لائف سے لے کر انٹرنیشنل لائف تک ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہے، تو ہم بھی ہر طرح سے افیکٹڈ ہیں اور اس سے نکلنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو ذاتی پرابلمز ہیں، یعنی کہ جو ہماری قومی مسائل ہیں، ہمارے پاس ان کا حل نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے نا، تو انٹرنیشنل پرابلمز میں کیا کریں گے ہم؟ جو گھر نہیں چلا پا رہا وہ ادارہ کیا چلائے گا؟ تو ملک تو گھر ہوتا ہے، تو دنیا تو ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے گویا کہ، تو جو گھر چلانے میں، اپنا گھر چلانے میں، ان کے پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، تو کیا چلا کر دکھایا ہم نے؟ خرابی ہی کی نا، ڈے بائی ڈے، اسپیشل آفٹر 60s۔ تو ابھی آپ دیکھیں، یہ ابھی حکومت نے اناؤنس فرمایا ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ نگران حکومت اناؤنس کر رہی ہے۔ نگران حکومت کے پاس اختیار ہے کوئی؟ ایسی ترمیمات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، کیونکہ کسی آئین کے اندر ترمیم کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، وہ اس طرح من مرضی سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے دین میں ہمارا آئین قرآن ہے نا، قرآن میں ترمیم نہیں ہو سکتی، مگر ہم نے اس کے بھی شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن ہی نہیں پڑھتے، اور جو ہمارے بابوں کی تشریحات ہیں، ایکسپلینیشنز ہیں، ہم ان پر جمپ کرتے ہیں، تو مسئلے وہیں رہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے سملرلی جو ہے نا دنیا کا بھی ہمارا آئین، وہ اتنی آسانی سے ہے، وہ امینڈیبل تو ہے، لیکن اس کی امینڈمنٹ کا پروسیس بہت طویل اور مشکل ہے، وہ ایسے 1-2 مہینوں میں نہیں ہو سکتا، اس پر تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ تو اصل میں کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کوشچن کیسے کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ کی نگران حکومت نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ جو اسکول ہیں وہ پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے۔ نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پر ابھی اسکول پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں۔ کیا حل ہے آپ کے پاس؟ یہ سوچو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی غریب بچہ پڑھ ہی نہیں سکے گا، اسٹل سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو اس کے اوپر پھر جب یہ بات ہوتی ہے کہ ہم فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، پہلے اپنے لیے کچھ کر لو۔ فلسطین کے لیے کچھ کرنا کا سوال تب اٹھے گا جب اپنے مسئلے حل کر لیں گے۔ تو بار بار یہی سوال ہوتا ہے، میسیجز پر ہو رہا ہے، فون کر رہے ہیں، ہم سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، جی ڈیفینیٹلی پریشان ہوں گے، اور ہم کیا کریں فلسطین کے لیے؟ بھائی فلسطین تو دور ہے، پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو۔ لہٰذا یہ کوشچن بہت ہی بچگانہ ہے اور بہت ہی جذباتی، اور یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں بہت آج کل یہ آ رہا ہے نا، ہاٹ ٹاپک ہے، اور بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اسے بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا نا، لہٰذا پرانی ویڈیوز نکال کر ڈالی جا رہی ہیں یوٹیوب پر، اور پرانی ویڈیوز ہیں، 2-3 سال پرانی ویڈیوز ہیں، اور وہ جی اپلوڈ کی جا رہی ہیں۔
اور ظاہر لوگ دیکھتے ہیں اپسیٹ ہوتے ہیں. اوکے, اس کے علاوہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ رنگ رنگ کے لوگ رنگ رنگ کی باتیں کر رہے ہیں. جہاد پہ جائیں, کہاں کہاں جائیں گے آپ؟ ہاؤ؟ اپنے تو سڑک پہ نکل نہیں سکتے, 2 ڈنڈے پہ سارے ہنس گئے. کتنے عمران خان کے فالوورز تھے. آئی ایم ناٹ سیئنگ یو اباؤٹ اینی تھنگ اباؤٹ یور ووٹ, جنہوں مرضی آ ہو, دیٹ از یور ڈیوٹی. میں صرف ایک فیکٹ کی بات کر رہی ہوں. عمران خان کے ساتھ کتنا کراؤڈ تھا, اور جب پولیس نے ڈنڈا اٹھایا چھوڑ گئے نا اس کو سارے. آپ پولیس کے ڈنڈے نہیں کھا سکتے, آپ اسرائیلیوں سے لڑیں گے جا کر. اوکے, ٹرائی فار اٹ کیسے جائیں گے؟ ہاؤ؟ واٹ از دا وے؟ ہر چیز کی گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی کہ نہیں ہوتی. اب اس پر کیا بات ہوگی اگر کوئی کاؤنٹر بات کرے گا کہ یہ جی حوصلہ توڑ رہے ہیں. نہیں نہیں, میں بالکل حوصلہ نہیں توڑ رہی, میں تو گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کرتی ہوں. حوصلہ توڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ کی جو حالت ہے, مسلم امہ کی جو حالت, خاص طور پر پاکستان کی, کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کے مسلمان اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ فلسطین کی کوئی مدد کر سکے. پیسے سے کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. بجلی کا بل ہی پورا نہیں ہو رہا, کسی کو کیا صدقہ دینا ہے ہم نے؟ اچھے خاصے لوگ جو ہے وہ صدقہ لینے کی پوزیشن میں آ گئے بجلی کے بلوں کی وجہ سے, پورا نہیں پڑا. فزیکلی جا سکتے ہیں آپ؟ چلے بھی جائیں کسی طرح, فرض کریں پہنچ بھی گئے, کیا کریں گے؟ نازک مزاج کے اتنے گلاس سے اپنا اٹھا سکتے, تو وہاں جا کر جہاد کیا کریں گے آپ؟ سمپل سی بات ہے. ایئر کنڈیشن گاڑی سے باہر اتر کے ٹھیلے سے پھل نہیں ہمارے بچے لے سکتے, جو ہماری یوتھ ہے. اگر آپ نے پھل بھی منگوانا ہے تو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کسی سپر سٹور پہ چلو, انہیں گرمی لگتی ہے, وہ نہیں کھڑے ہو سکتے. جو گھر سے نکلتے ہیں ایئر کنڈیشن کلاسوں میں بیٹھتے ہیں, ایئر کنڈیشن کلاسوں سے نکلتے ہیں ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں, ایئر کنڈیشن گاڑیوں سے نکلتے ہیں ایئر کنڈیشن کمروں میں آ جاتے ہیں. وہ جہاد کیسے کریں گے؟ سمجھا دیں, میں سمجھ جاؤں گی. فوج سے مدد کر سکتے ہیں آپ, آرمی سے مدد کر سکتے ہیں نا. آرمی تو آپ کی اچھی ہے لیکن اور تاڑی مدد نہیں کرتی بھی, انہوں نے کتوں کرے گی؟ پرابلم تو ہوتی ہی ہے. حکومتی لیول پر آپ مدد کر سکتے ہیں. کیا پاکستان میں پچھلے 2-2.5 سال سے کوئی حکومت ہے؟ کوئی آپ کے نامزد کیے ہوئے, آپ کے چنے ہوئے حکمران ہے پاکستان میں؟ جس دن عمران خان کو اٹھایا گیا, اتارا گیا, اس دن کے بعد سے پاکستان میں کوئی لیجیبل گورنمنٹ ہے؟ جو تو گورنمنٹ ہی نہیں ہے تو مدد کتوں کرے گی؟ اور اگین جو گورنمنٹ جو جیسی بھی ہے وہ آپ کی مدد نہیں کر پا رہی, اور کون مدد کرے گا جس میں سے ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہے. نواز شریف صاحب کو اپنا مسئلہ پڑا ہے, انہوں نے کیسے پاکستان آنا ہے, کہاں جلسہ کرنا ہے, یہی کچھ بیانات آ رہے ہیں نا. دیکھیں جی, لیڈر صرف سیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا, لیڈر ہمیشہ لیڈر رہتا ہے, وہ سیٹ پر ہو یا نہ ہو. ہاں, لیڈر لیڈر ہے. دیکھیں جو گاندھی تھے, جناح تھے, اور لوگ تھے جو کتنے لیڈر تھے ماشاءاللہ. آپ دیکھیں سارے کے سارے تو حکمران نہیں بن گئے. جب وہ حکمران نہیں بھی تھے تو وہ لیڈرز تھے کہ نہیں تھے؟ وہ لیڈرز تھے نا. اور لیڈر کی بات ویلیو کرتی. اوباما اب حکمران نہیں ہے نا اوباما حکمران, پر اوباما اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کی ویلیو ہے کہ نہیں ہے نا, کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک صدر رہے ہیں اور رہیں گے. وہ آفس نہیں سنبھال رہے مگر ان کا سٹیٹس وہ ہو چکا ہے, لیڈر رہے ہیں وہ ایک ٹائم میں قوم کے, اور لیڈر ہمیشہ ہوتا ہے. یہ ہے وہ سمجھنے کی بات. تو یہ لیڈرز ہیں, گورنمنٹ میں ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نواز شریف صاحب کتنے سالوں سے لیڈر ہے پاکستان کے, میں تو بڈھی ہو گئی انہیں کو دیکھتے دیکھتے. میرے بچپن میں وہی تھے. ایک بیان دیا انہوں نے فلسطین کے موضوع پر. یہی بس بیانیے چل رہے ہیں کہ پاکستان کب آئیں گے, کون سا جلسہ کہاں ہوگا. مریم نواز صاحبہ تو بولتی بھی بڑا ہے. ہاں جی, اور پاکستان کے
حالات کو بہتر کرنے کے دعوے بھی بڑے ہیں ان کے. اور زرداری صاحب صدر رہے ہیں, اور یہ ہمارے کاکڑ صاحب, اور ایون تو کہ خود عمران صاحب بھی جیل میں جب ان کے وکیل وغیرہ ملنے جاتے ہیں تو کیا بیانات سامنے آتے کہ بھائی ان کے یہ مسائل ہیں, ان کے یہ مسائل ہیں, ان کا یہ ایشو ہے. یہ مسئلے ہی چلتے ہیں نا, ان کی بیوی کو ملنے دیا جائے, ان کی بہن کو ملنے دیا جائے, عوام سے اپیل نکلنے کی ہوتی ہے. فلسطین کے موضوع پر تو ان کا بھی کوئی بیان نہیں آیا, کیونکہ لیڈر ہوتا ہے, چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہو, چاہے وہ کہیں بھی ہو, لیڈر ہوتا ہے. اس کا ویژن تو کوئی نہیں نہ چھین سکتا, لیڈر کا ویژن تو کوئی نہیں چھین سکتا. اور سب سے زیادہ جو امید رہی تھی وہ عمران خان سے تھی, بلکہ میں اگلے دن بھی پرسوں بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک عرب جرنلسٹ تھے, تو وہ ایک یو اے ای کے عہدیدار کا, سفارتکار کا وہ کر رہے تھے انٹرویو, عربی میں تھا بیسیکلی. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ عالم اسلام میں مضبوط آواز جو تھی وہ عمران خان کی تھی, جو انفارچونیٹلی اس وقت جیل میں ہے. تو کوئی مضبوط آواز نہیں اٹھی, ایسا ہی. اب بہرحال میں تو یہ کہتی ہوں کہ جیل سے بھی آواز اٹھ سکتی تھی. ہو سکتا ہے کہ ان کی بات باہر نہ پہنچنے دی گئی ہو یا کچھ ہو, وہ میں نہیں جانتی, لیکن مجھے بہرحال پرسنلی اس بات کا بڑا دکھ ہوا ہے. پرسنل لیول پر میں کہہ رہی ہوں کہ سیاسی اعتبار سے عمران خان سے یہ توقع تھی کہ وہ اسلامی محاذ پر اچھے کام کریں گے. موقع نہیں ملا, وہ ٹھیک ہے, لیکن آواز تو اٹھائی جا سکتی تھی. دیکھیں آگے بھی اب کیا ہوتا ہے. باقی اسلامی دنیا کو چیک کر لیں, کیا کیا, کتنے اسلامی ممالک ہے. سعودیہ نے کیا کیا, بیان دیا. سعودیہ نے بیان دیا, سعودی گورنمنٹ نے بیان دیا کہ بھئی بڑا جارحانہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اوکے بڑی مہربانی. باقی ممالک نے کیا کیا, کہ کوئی ڈھیلا ڈالا بیان کسی کا آ گیا سو آ گیا. اچھا ترکی کے تو طیب اردگان کو تو آپ ارطغرل بنا کے بیٹھے ہوئے تھے, کیا کیا طیب اردگان صاحب نے, کیا کیا. اسلامی دنیا کا ہیرو اور پتہ نہیں کیا, اور کم از کم آپ سب یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی طیب اردگان اپنی آرمی لیں گے اور حملہ کر دیں گے اسرائیل پر. کیا ہوا؟ 58 اسلامی کنٹری ہیں, 58 اسلامی کنٹری ہیں. تو پتا نہیں, مجھے نہیں پتا, میں نے نہیں نمبر چیک کیا. اچھا اسلامی کنٹریز میں ترکی بھی شامل ہے. اچھا بہت کم نالج ہے آپ کا, وہ تو سیکولر ہے. کس نے کہا وہ اسلامی ملک؟ وہ تو ایک زمانے سے سیکولر ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب خلافت ختم ہوئی ہے اور مصطفیٰ کمال پاشا جسے ہیرو بنایا ہوا ہے آپ کے لوگوں نے نصاب کے اندر, اس نے ٹیک اوور کیا ہے, اس نے خلافت ختم کی اور ترکی کو سیکولر ملک قرار دیا. سیکولر کا مطلب ہوتا ہے لادین. جیسے انڈیا سیکولر ہے, ترکی بھی سیکولر ہے. اور کسی ملک کا سٹیٹس وہ ہوتا ہے جو اس کے نیشنل ڈیٹیل میں لکھا جاتا ہے. وہاں کی اکثریت عوام مسلمان ضرور ہے, لیکن ترکی سیکولر ملک ہے. سٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی نہیں ہو رہی. ترکوں کی بات نہ کریں, ترکی کی بات کریں. جتنے اسلامی جمہوریہ دا حال ہے اتنے سیکولر دا کی ہونا ہے. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ترکی سیکولر کا مطلب ہوتا ہے لا دین, جس کا کوئی دین نہیں ہوتا. ہاں جس کو کہتے ہیں سعودیہ کی واپس ملنے والی ہے. کیا سنتے جائیں, خلافت دوبارہ غیر عربوں میں نہیں آئے گی, یہ بھی لکھ لیں. کا معاہدہ تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور اب واپس ترکی کے پاس آ جائے گا. یہ تو پچھلے دنوں بہت زیادہ باتیں کہ 100 سال کا معاہدہ ختم ہو گیا. اینا دے نالو یاسی کچھ پابندیاں تھی ترکی پر. جس وقت سیکنڈ ورلڈ وار میں ترکی ہارا ہے تو ظاہری بات ہے برطانیہ جیت گیا تھا, برطانیہ امریکہ اور ان کے اتحادی, تو انہوں نے کچھ کنڈیشنز رکھی تھی, کچھ پابندیاں لگائی تھی ترکی پر. کوئی فوجی پابندیاں تھیں, کوئی تجارتی پابندیاں تھیں, اور ان کا زمانہ 100 سال رکھا گیا تھا. جاپان پر بھی پابندیاں لگی تھی. جاپان میں تو فوج تک تعینات رہی ہے برطانیہ کی اور امریکہ کی.
70 साल तक फौज की तैनाती का था और उनके एक्सपेंसेस वो बेयर करते थे, और वो खत्म हुआ और वो वापस गए। उसके अलावा उन पर भी कुछ पाबंदियां थी कि इनके इस हद से ज्यादा फौज नहीं स्टेबल कर सकते, इससे ज्यादा जो है वो यानी कि वेपन्स नहीं बना सकते, फिर वेपन्स के ऊपर चेक रहेगा, वगैरह वगैरह। ये पाबंदियां जापान पर भी थी और तुर्की पर भी, क्योंकि इत्तेहादी थे ना, तो हार गए थे। वो पाबंदियां खत्म होगी, समझ आई? खिलाफत कोई अब्बा जी की उतारी हुई अबा नहीं है जो एक नस्ल उतारे और दूसरी पहन ले। खिलाफत का तो कायम बड़ा मुश्किल है। वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस खिलाफत कायम कर गए थे। अब खिलाफत कायम करना किसी के अब्बा जी की औकात नहीं। अब तो आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम, खिलाफत तब कायम, किसी की जरूरत नहीं है। 2 बंदों को आप एक मस्जिद में नमाज पढ़ा नहीं सकते। मेरी दोस्त गई हुई थी उम्रे पे, माशाल्लाह खुद भी पढ़ाती हैं, आलिमा है, तो वो मुझे बड़ी दुख से वैसी शेयर कर रही थी। कहती वहां पूरा एक ग्रुप बैठा हुआ था पाकिस्तानियों का जो नमाज नहीं पढ़ रहा था। तो कहती मैंने उनसे कहा कि आप हरम में है और आप हरम में नमाज नहीं पढ़ रहे। तो कहने लगे कि ये बददीन है, बदअकीदा है, इनके पीछे नहीं हम नमाज पढ़ते। तो कहती मैंने कहा आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? तो कहती उन्होंने हमें रिटर्न फतवा दिखाया जो माजरत के साथ, लेकिन बरेलवी दारुल उलूम का था, और उस पर 100 उलमा के सिग्नेचर्स थे, और यही था कि जो अरब उलमा है, हरमैन की उलमा है, ये बददीन और बदअकीदा है, तो इनके पीछे नमाज पढ़ना हराम, इनके पीछे हज करना हराम। तो कहती है मैंने पूछा कि फिर आप लोग क्यों आए, कैसे हज? तो वो कहने लगे हम तो सिर्फ अपने मुकद्दस मकामात की जियारत के लिए आते हैं। तो कहती मैंने कहा कि आपको लगता है अल्लाह हरम बदअकीदा लोगों के कब्जे में दे देगा? तो कहने लगे क्यों, फलस्तीन पर इसराइलियों का कब्जा नहीं हुआ हुआ? आप हरम के अंदर एक इमाम की जमात नहीं इकट्ठी करवा सकते, खिलाफत करवाएंगे आप? खिलाफत करवाएंगे कैसे? आधे मुल्क आपके शिया और आधे आपके सुन्नी, पहले इनसे तो निकले। किसी ने खुल्लम खुल्ला अगर आवाज उठाई है तो वो ईरान है। ईरान ने खुल्लम खुल्ला आवाज उठाई, लेकिन जाहिरी बात है वो भी फिलहाल सिर्फ आवाज ही उठा सकते हैं। हथियार की सप्लाई वगैरह भी ज्यादातर ईरान ही की तरफ से। वो कोई मकतबा अहले सुन्नत वल जमात आला हजरत से नहीं गए, और वो देवबंद साहब से भी नहीं गए, और वो मस्जिद अहले हदीस से भी नहीं गए। वो जो हथियार उनको सप्लाई होती है ना, उसमें मेजर हिस्सा जो है वो ईरानियों का है और कुछ रूस का है। रूस का कोई मजहबी ताल्लुक नहीं है, मगर सियासी फायदा है। सबसे मजबूत आवाज जो उठी है ना, वो उठी है रूस और चीन की। तुझको हो शर्म तो पानी में जाके डूब मर, ये मुसलमानों के लिए है ना। यानी कि सबसे मजबूत जिसने बात उठाई है यूएनओ में, और जिसकी वजह से इसराइल पर कुछ प्रेशर है, वो है रूस और चीन। दोनों गैर मुस्लिम ममालिक है, मगर उनका मफाद है। ठीक है, सियासी मफाद ही सही, कोई मफाद तो है। हमारा तो सब कुछ ही इकट्ठा है ना। हमारा तो दुनिया का मफाद भी इकट्ठा है और आखिरत का मफाद भी इकट्ठा है, मगर हम कहाँ हैं? तो सबसे पहली बात जो समझने की है, जो मैं अर्ज करना चाहती हूं, एक अहम क्वेश्चन, और ये होना चाहिए, जिसको नहीं ये क्वेश्चन सताता उसका तो जमीर मर चुका है, कि फलस्तीन में इस वक्त ये हालात हैं, तो हम क्या करें? हमसे भी तो सवाल होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, इसमें एक बात तो पहले मैं आपसे कहूंगी, हर वीडियो को सच ना समझा करें। 90% वीडियोस पुरानी चल रही हैं। बड़े यहां से इन्होंने वहां पर न्यूज एंकर बिठाए हुए ना, जो इनको नई वीडियोस भेज रहे हैं, इतने बुरे हालात में। लिहाजा जो इस वक्त की लेटेस्ट वीडियोस है, अगर आपने देखनी है तो फिर माजरत, लेकिन मगरबी मीडिया को देखें, बीबीसी को देखें, CNN को देखें, या फिर अरब अल जजीरा वगैरह को देखें।
उस पर आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है। जो हमारे यूट्यूब चैनल है इनकी बददियानती है ना, मुझे इतना अफसोस होता है। एक तो हमारा ये बड़ा ही संजीदा मैटर है, उससे भी पैसा कमाने की कोशिश है, और दूसरा झूठ का हाल ये है कि 3-3 4-4 साल पुरानी, क्योंकि फलस्तीन जाहिरी बात है ये हमारे दिल का वो जख्म है, मेरा तो है, जिसको मैं मुसलसल देखती हूँ। तो लिहाजा उसकी वीडियोस मुझे, मैं नजरों से हर एक गुजरी है, और अल्लाह के फजल से मेरी याददाश्त ऐसी है, मैं जो वीडियो एक बार देख लूं, मैं जो किताब एक बार पढ़ लूं, वो उसका एक फटा हुआ टुकड़ा भी सामने आता है ना, तो मैं पहचान जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है, मेरा जाती कमाल नहीं। वो सारी वीडियोस 3-3 4-4 साल पुरानी इन्होंने अपलोड की हुई है, और जो है उसके ऊपर कहानियां डाली हुई है। तो अब बताएं, इस बददियानती के साथ हमने कहाँ जाना। बहरहाल ये तो बीच में एक बात आ गई, यकीनन हालात खराब है। अभी हुआ क्या है, चले मुझे ये बताएं। हम सब फलस्तीन फलस्तीन तो कर रहे हैं, क्या हुआ, मामला क्यों छिड़ा? अभी तो अमनो अमान हो रहा था, अमनो अमान हो रहा था ना, तो फिर ये सब क्यों शुरू हुआ, क्या हुआ? कुछ तो हुआ होगा। कहते हैं कि 9/11 की तरह ही कुछ चली अंदर से, वो उन बेचारों के पास इतनी कहाँ हौसला था। इनका इरादा यही है मस्जिद अक्सा को बहाना बना। देखिए, इस बात को टॉन्ट ना समझिएगा, लेकिन बात यह है कि वी आर नॉट सीरियस। वरना हम जो कर सकते थे वो तो करते ना, हम देखते एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, मगर हमने तो खोल कर वो भी नहीं देखा। सिर्फ बस सुन लिया फलस्तीन में जंग हो रही है, हाय 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 हाय, बस। इसी से आप देख लें कि हमारी सीरियसनेस का लेवल क्या है। तो जैसे हम है वैसी हमारी कौम है, हम इसी कौम के फर्द हैं ना, हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कौम को। तो बस चाय की टेबल पर बैठकर बिरयानी खाते हुए दोपहर के खाने में बड़े जालिम इसराइली, हो वो फलस्तीन का हाल देखा है, जस्ट अ टॉपिक टू टॉक। वरना कम से कम हम ये तो देखते कि हुआ क्या है। जैसा हमें कंसर्न है वैसा हमारे हुक्मरानों को कंसर्न है। एनीवेज, इस बार हमास ने हमला किया जी। जी, ये सुना न्यूज में, हमास और हिजबुल्लाह वहां की दो बड़ी तहरीकें हैं आजादी के लिए जो काम कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है, हिजबुल्लाह जो है वो कट्टर शिया तंजीम है, और हमास कट्टर सल्फी वहाबी तंजीम है। इन लोगों के नजदीक है सल्फी अहले हदीस, लेकिन अपनी कॉज पर इकट्ठे हैं। मैंने आपसे बहुत पहले एक बार अर्ज किया था कि अगर कोई कॉज मुसलमानों को सेक्ट से निकालकर इकट्ठा कर सकती है तो वो जिहाद है। जिहाद वो वाहिद परचम है जिसके तले मुसलमान हर इख्तिलाफ भूल कर इकट्ठे होंगे, और ये पहले भी हो चुका है। बहुत सारे वाकयात हैं, मगर चूंकि फलस्तीन की बात हो रही है तो मस्जिद अक्सा की आजादी के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी के झंडे तले जब जमा हुए थे तो उस वक्त सारी तफरीक मुट गई थी, कौन शिया तो कौन सुन्नी। बरेलवी तो तब थे ही नहीं, ना देवबंदी थे, तो शिया सुन्नी थे, तो ना शिया तो ना सुन्नी, सब इकट्ठे हो गए। जी जी, खारजी, हाँ उस वक्त सब इकट्ठे थे, तो लिहाजा शिया सुन्नी सब इकट्ठे हो गए थे, कोई फर्क नहीं रहा था। अब इसके अंदर पहली बात यह है कि हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली। सबसे पहले ये समझ लें कि हमास, फलस्तीन का जो पूरा मुल्क है ना, बाबरकत है माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से तवील अरसा मुसलमानों के पास रहा। टाइटस के जमाने में इनको निकाल दिया गया था, यहूद को फलस्तीन से। यहूद ये कहते हैं कि ये जमीन हमें अल्लाह ने दी है, फलस्तीन हमें अल्लाह ने दिया है। ऐसा था, भेजा था ना अल्लाह ने, तौरात ने भी बयान किया, कुरान ने भी बयान किया, बिल्कुल सही, उस वक्त दिया था। हाँ उस वक्त दिया था,
مگر پھر پہلے تو بخت نصر نے ان کو اجاڑا اور لے گیا ان کو. پھر ٹائٹس رومی اس نے اجاڑا, اس نے پھر ان لوگوں کو برباد کر دیا. اور سیکنڈ ٹائم ہیکل انہوں نے بنایا تھا. پہلے تو حضرت سلیمان نے بنایا تھا, پھر انہوں نے بنایا تھا. جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اس کو تو بخت نصر نے اجاڑ دیا تھا. پھر انہوں نے بنایا تھا, وہ جنوں والا بنایا بنویا تو گیا نا, پھر انہوں نے اسی نقشے پر اسی پر تعمیر کیا. اسے پھر ٹائٹس رومی نے برباد کر. یہ مارے گئے زیادہ, کچھ غلام بنے, اکثریت بھاگی. کوئی کہیں آباد ہوا, کوئی کہیں آباد ہوا, کوئی کہیں آباد ہوا, بکھر گئے سارے. بڑی تعداد تو مروائی اللہ نے ان کی. یہ تھوڑے سے ہمارے لیے بچا کے رکھے, سیریسلی یہ ہماری آزمائش ہے, یہ اس لیے ہے. تو یہ سارے بکھر گئے. اب سیکنڈ ورلڈ وار میں ان لوگوں نے 1947 سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 1944 1945 ہے نا, تو اس میں یہ ساری سازش پیچھے چل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے نا کہ جو ہے فرسٹ ورلڈ وار میں یہ سارا پروپیگنڈا شروع ہوا تھا کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مارے, تو بڑا ماتم اور بڑا ڈرامہ. اور یہ بھی کہانی ہے, ہولوکاسٹ جو ہے یہ بالکل کہانی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کا بڑا پروپیگنڈا ہوا, بڑا پروپیگنڈا ہوا, بڑا پروپیگنڈا ہوا, بڑی بات اٹھائی گئی. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 1944-45 میں سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی. اس نے مسلمانوں کو بری طرح نقصان پہنچایا. اس عرصے میں یہودی جو ہے یہ مطالبہ کرتے آ رہے تھے فرسٹ وار کے بعد سے کہ ہمیں جہاں ہم رہتے ہیں لوگ مار دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں آؤٹ سائڈرز مانتے ہیں. ہمیں اللہ نے فلسطین کی زمین دی ہے, وہ ہمیں دی جائے. اب یہ بات احتجاجوں میں آ رہی تھی, ادھر آ رہی تھی, ادھر. اور آپ اس سینیریو کو اب سمجھے, آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پرانی ریکارڈنگز بھی ملیں گی. اس وقت کا سینیریو یہ بیک گراؤنڈ بنایا گیا تھا کہ 60 لاکھ یہودی مار دیے گئے. ان کو جو ہے چربیاں پگھلا کر ان کی چربیوں سے صابن بنا کر استعمال کیے گئے. بڑی کہانیاں تھی. ان کی ہڈیوں کو نا وہ ٹولز ان کے بنا لیے گئے. وہ کہانیاں تھی. گیس چیمبرز میں ڈال کر مار دیا گیا لوگوں کو, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے لٹا کر. تو ہزاروں لوگوں کو خیموں میں ڈال کر خیمے بند کر کے گیس چھوڑ دی گئی اور وہ بیچارے مار دیے گئے. کوئی ثبوت نہیں کہیں پر, لیکن اتنا بڑا جھوٹ بولا گیا اور اتنا جھوٹ اس کو پھیلایا گیا, اتنا پھیلایا گیا کہ لوگوں نے اس کو سچ مانا. ہر کوئی یہودیوں کے غم میں رو رہا ہے. یہاں تک کہ نام نہاد مسلمان بھی, جیسے ابھی بھی فضل الرحمان صاحب کو حماس سے فوراً یہ اپیل کرنے کا خیال آیا کہ انسانی حقوق کا خیال رکھنا. جیسے دنیا میں جتنا ظلم ہے وہ ہم ہی تو کرتے آ رہے. وہ 60 لاکھ مرے جو تھے جھوٹ موٹ کے, وہ ہم نہیں تو مارے تھے. تو اسی طرح مسلمانوں کے بھی بڑے سارے لوگ تھے جو یہودیوں کے غم میں بیٹھے اس وقت رو رہے تھے. تو اس وقت مظلوم یہودی ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپیل کر رہے تھے کہ ہمارے خدا نے ہمیں جو زمین دی ہے وہ ہمیں دے دو. اب بات یہ ہے کہ ان کو تو ٹائٹس سے نکال پھینکا تھا. ان کو تو ٹائٹس نے کب کا نکال پھینکا تھا, اور یہ تو سرزمین سے خود نکالے جا چکے تھے. مسلمانوں نے ان سے تو نہیں لی. مسلمانوں نے تو فلسطین ان سے نہیں لیا. مسلمانوں نے تو روم سے فتح کیا ہے, رومن سے فتح کیا ہے. اور ان کو تو انٹر نہیں ہونے دیتے تھے عیسائی. عیسائی ان کو انٹر نہیں ہونے دیتے تھے. اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امن معاہدہ ہوا ہے مشہور فلسطین کا, تو عیسائیوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ان کو نہیں آنے دینا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں, عبادت گاہ ان کی بھی, ان کا بھی قبلہ, ہاں ان کو ہم آباد نہیں ہونے دیں. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے لیے الاؤ کیا. اور صدیوں کے بعد یہ لوگ دوبارہ انٹر ہو سکے ہیں بیت المقدس میں. وہ الگ بات ہے, یہ نہ چک رہے. پھر اس کے بعد ان کو بیت المقدس آنے کی اجازت ہمیشہ رہی.
बस आबाद होने की इजाजत नहीं थी, और इसीलिए नहीं थी कि इन्होंने यही गंद करना था। बहरहाल फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1947 में ऐलान बाल्फोर हुआ है, इसको कहते हैं बाल्फोर डिक्लेरेशन। वो डिक्लेरेशन ये था कि यहूदी बेचारे बड़े मजलूम हैं, उनका अपना कोई मुल्क नहीं है, और उनको अल्लाह ने, अच्छा अल्लाह का नाम कौन ले रहा है? ईसाई। देखो बेटा, जो यूएनओ है ना, ये एक सेकुलर इंस्टीट्यूट है, ये मजहब की बिना पर काम नहीं करता। तो जो मजहब को मानता ही नहीं है, उसे मजहब का हवाला का दिल ही ले आते हो। मुसलमान कुरान का हवाला दे दे तो इंतहा परस्त है, खुद अब तुम बाइबल पर और तौरात पे उठ के फतवे देने लगे हो। ये जमीन उनको दी है अल्लाह ने, तो ये जमीन उनको दे दी। अब इस कहानी को लेकर जाहिर बात है बड़ा मसला हुआ, मुसलमानों ने भी इसको कबूल तो नहीं करना था। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा बहस हुई, मुसलमानों ने बहुत एहतजाज किए। फिर एक साल में 1948 में, यानी इस पर एक्चुअल बरतानवी कब्जा हुआ था 1922 में, जंगें चल रही थी ना आपस में, तो 1922 में ये बरतानवी कब्जे में आ गया था। लेकिन बहरहाल ये मुसलमानों ही का मुल्क है। जैसे बड़े सगीर पर बरतानिया का कब्जा हो गया तो मुसलमानों की जगह कोई और कौम तो आबाद नहीं ना हो गई, तो फलस्तीन पर हुकूमत बरतानवी हो गई थी, लेकिन बहरहाल वो मुसलमानों का ही मुल्क था। 1947 में बाल्फोर डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस हुआ है, बरतानिया ने किया है। एक साल तक मामला चलता रहा। 1948 में यूएनओ ने इसको तकसीम करने का फैसला किया फलस्तीन को, और एक रोड मैप बनाया गया, यानी कि फलस्तीन को बांटने का एक मैप बनाया गया, जैसे पाकिस्तान और भारत के लिए बनाया गया। और जिस तरह पाकिस्तान और भारत में डंडी हुई, मारी गई थी, वहां भी मारी गई, और मेजर हिस्सा इसराइल को दिया गया। अरबों ने इसे कबूल नहीं किया। इस बात को लेकर आपस में जंग छिड़ गई, फलस्तीन की और इसराइल की। अभी तो इसराइली वहां पर आना शुरू हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी, जाहिर बात ये चीजें पहले से प्लान्ड होती हैं। तो लिहाजा हुआ ये कि फलस्तीनी, अगरचे वो वहां पर, अब ये आप इनके हालात को कंपेयर करें ना, जो फलस्तीनी थे ये वहां रह रहे थे, ये उनकी रियासत थी, मगर उनकी आर्मी मजबूत नहीं थी ना। इसराइलियों ने रियासत अभी बनानी थी, मगर दे वर प्लानिंग फ्रॉम द सेंचुरीज, लिहाजा उनकी आर्मी थी और मजबूत थी। तो इनका हल्का हल्की आबादकारी तो पहले से ही हो गई थी। 1922 से जब से ये बरतानिया के उसमें आया था ना, इक्का दुक्का लोग आबाद हो रहे। 1947 में जब ऐलान किया है बरतानिया ने, और यहूदी आलिमों ने, रिब्बियों ने ऐलान किया कि आबाद हो जाओ, तो पूरी दुनिया से लोग आए। अगर आपको ये अनाउंसमेंट मिले कि भाई मक्का और मदीना में आप आके सेटल हो सकते हैं, तो आप नहीं जाएंगे उठकर? वो भी गए, सिंपल सी बात है। एक साल के अंदर 8.5 लाख यहूदी गए। आपको बताऊं अभी भी इसराइल में कितने यहूदी? 10 लाख। कोई तादाद नहीं है, मसला तादाद का नहीं है, मसला तैयारी का और मकसद के साथ संजीदगी का। तो इन लोगों ने वही किया जो भारत ने हमारे साथ भी किया था। चलिए, हमारा सिनेरियो थोड़ा सा चेंज था, फलस्तीन का इससे बहुत बेहतर हो सकता था अगर फलस्तीनियों ने अपनी ताकत बहाल रखी होती, क्योंकि वो एक आजाद मुल्क थे एक अरसा तक। उन्होंने बहुत सारे इलाके, वो जो झड़पें हुई ना, उसमें बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया, जैसे हमारे कश्मीर पर किया और बहुत सारे इलाकों पर किया। उसी तरीके से हमारे पास तो आर्मी थी नहीं ना, पाकिस्तान तो भी बना था, हमारे पास तो भी कुछ भी नहीं था, लेकिन फलस्तीन के इतने कमजोर थे तैयारियां और उनकी आर्मी इतनी वीक थी कि इन मामूली झड़पों के अंदर उन्होंने बहुत सारे इलाके फलस्तीन के हथिया लिए, जो रोड मैप में फलस्तीन को दिए गए थे, और वो सब इसराइल में चले। फिर टाइम टू टाइम इनकी झड़पें चलती रहीं। उस वक्त आपको पता है यासर अराफात फलस्तीन के हाकिम थे। अब मसला क्या है इस वक्त की करंट, ये तो फिर लंबी हो जाएगी ना तफसील। करंट सिचुएशन ये है कि गजा की पट्टी, आप लफ्ज सुनते हैं ना, गजा की पट्टी,
नक्शों में दिखा जी, और मगरबी किनारे पर थोड़ा सा हिस्सा, बस ये फलस्तीन के पास है, बाकी सारा फलस्तीन इसराइल के पास है। जी, वो इलाके लेते गए, ये पीछे हटते गए। और यहां पर जो 20-25 लाख के करीब मुसलमान हैं, वो गजा की पट्टी में गोया कैद। ये दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना है, खुद मानते हैं यूरोपीय जो मुफक्किर हैं, जो मीडिया पर्सन्स हैं, वो मानते हैं कि इस वक्त ये दुनिया की गोया सबसे बड़ी जेल है। क्यों? 1 किलोमीटर तक उन्होंने प्रॉपर बैरियर लगाए हुए, ये हमारे जैसे नहीं, प्रॉपर बैरियर लगाए हुए। उसके आगे कंक्रीट वॉल है, और वॉल उन्होंने नीचे तक डाली है कि नीचे से कोई सुरंग बनाकर भी पार नहीं जा सकता। अब 2 छोटे से टुकड़े हैं उनके पास, फलस्तीनियों के पास, वो भी आधा उधर है और आधा इधर, बीच में वो कंक्रीट की वॉल, कोई किसी से मिल नहीं सकता। तो आप ये समझे कि 70% 75% इसराइल फलस्तीन इसराइल के पास है, और बाकी जो है तकरीबन 25% जो है वो फलस्तीनियों के पास है, और वहां पर कोई हाल नहीं। अच्छा, वहां पर मसला क्या है? वो जो गजा की पट्टी है और वो बीच में मगरबी साइड पर एक टुकड़ा है फलस्तीनियों के पास, उसके रिसोर्सेज तो सारे इसराइलियों के हाथ में है। फिर चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो तिजारत हो, सब कुछ। वो जब चाहे बिजली बंद कर दे, वो जब चाहे पानी बंद कर दे, क्योंकि मेन मुल्क तो उनके हाथ में है ना। वो जब चाहे बंद कर दे, क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से फलस्तीनी बहुत तकलीफ में है। तो अभी थोड़ी सी सुलह सफाई की बातें हो रही थी, एक्चुअली चाहिए इसराइल को भी नहीं है, लेकिन जब होती है तो वो हिस्सा ले लेता है बीच में। और ये डिसाइड हो रहा था कि जितना हिस्सा फलस्तीनियों के पास है फलस्तीनी रहे, बाकी में इसराइल है, इसराइल रहे, इसराइल को लीगल जो है वो रियासत माने मुसलमान ममालिक, और जो यरूशलेम है वो जो है एक सेफ एरिया, पीस एरिया रहेगा, जहां पर सब आ जा सके। उसे किसी एक इस पर बात हो रही थी, और इस बात को लेकर बड़ा जोश भी दिखाया जा रहा था। ये जो सऊदी हुकूमत वाले खुश हो रहे थे ना कि सुलह, वो इसी बात पर हो रहे थे कि भाई ये अब हमारी सुलह हो जाएगी इसराइलियों के साथ। ये इन्हीं चक्करों में कर रहे थे। मगर हमास वालों ने कहा कि हमें ये सब कबूल नहीं, होना भी नहीं चाहिए। ये नहीं, उनका नजरिया सही है। आप हिस्ट्री उठाएं तो बिल्कुल उनका नजरिया सही है, मैं तो 100% उनके साथ हूँ। लेकिन मसला ये है कि अब इसराइल इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, 8वीं अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है। 7 तो डिक्लेयर्ड है ना। आपको क्या लगता है इसराइल के पास एटम बम नहीं है? और पाकिस्तान की आर्मी क्या इसराइल की फौजी ताकत का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती है। उस शिद्दत से नहीं कर सकती, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। F-16 भारत के पास नहीं है, और आज F-16 इसराइल के पास है, वो भी इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका अंदर अंदर इसराइल को वो टेक्नोलॉजी देता है जो हमारे पास भी नहीं होती, क्योंकि F-16 तो उसने हमें भी नहीं दिए थे ना, वो तो फिर बनाए गए। तो मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान की फौज उनसे हार जाएगी, मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ कि टेक्नोलॉजी के एतबार से तो अभी हमारी आर्मी उनको बीट टेक्नोलॉजी के लेवल पर नहीं कर सकती। बाकी अगर जंग होगी, नीयत से करेंगे तो जीत जाएंगे। पाकिस्तान की आर्मी बड़ी मजबूत आर्मियों में से है, और अमेरिका जैसी ताकतवर फौज को वियतनाम वालों ने शिकस्त की धूल चटाई हुई है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं ये बिल्कुल ये ना समझिएगा कि मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी इसराइल से जीत नहीं सकती, जीत सकती है, मगर उसके लिए जिस चीज की जरूरत है ना, वो है ईमान की। बाकी हमारे पास सब कुछ है। मैं वैसे आपसे कंपैरिजन की बात कर रही हूँ कि इस वक्त टेक्नोलॉजी में इसराइल का मुकाबला करना किसी भी मुल्क का काम नहीं है आसानी से। पाकिस्तान की जो बेहतरीन हमारी फौज, वैसे एक बेहतरीन फौज है, हमारे जर्नल कितने ही बिके हुए हों, आर्म फोर्सेस हमारी अच्छी हैं और बड़ी वेल इक्विप्ड भी हैं और वेल ट्रेंड भी हैं, फिर भी हमारी आर्मी ये नहीं कह सकती कि भाई ऐसी मजा चखा ही लवांगे। जब जंग होगी तब पता लगेगा, कभी वो जीतेंगे कभी हम जीतेंगे, इस तरह वाली जंग होगी। तो उसका हमास क्या बिगाड़ सकता है?
हमास के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा ये भी याद रखें इसराइल के हदूद के अंदर कोई मिसाइल वगैरह मार नहीं कर सकता, उन्होंने हिफाजती सिस्टम बड़ा मजबूत रखा। फिर इस हमास वालों ने क्या किया, इन्होंने 7,000 मिसाइल फायर किए। 7,000 मिसाइल, वो कोई बहुत ताकतवर मिसाइल नहीं थे, सिर्फ ये था कि 7,000 में से कुछ तो फिर ब्रेक करेंगे ना, और उन्होंने किया। और एक्चुअली इससे उनका नुकसान नहीं हुआ इसराइलियों का कोई ज्यादा, ये सिर्फ उनकी अना पर पत्थर मारा गया। ये वही हाल है कि एक फलस्तीनी बच्चा ना टैंक को पत्थर मारता है, उसको पता है टैंक का कुछ नहीं बिगड़ना, मगर उनकी अना पे तो चोट लगेगी ना, निकलेंगे ना टैंक से बाहर। ये उसी किस्म की कोशिश। इसके ऊपर हमारे लोग क्या लिख रहे हैं, अब पता चलेगा। अच्छा इतना मुझे अफसोस होता है, हिटलर के जो इन्होंने 3-4 वो बनाई हुई ना पिक्चर्स कैद खानों की, उन पिक्चर्स को लगा लगा कर लिख रहे हैं अब पता चलेगा यहूदियों को कि इनका क्या हाल होता है। यानी वो हिटलर ने हमारे मशवरे पे किया था, अगर किया था, वैसे तो किया ही नहीं उस बेचारे ने, लेकिन अगर किया था तो हमारे मशवरे पर किया था। या अगर फलस्तीन वाले कामयाब हो जाएंगे तो वो हिटलर वाला हाल करने वाले हैं इनका। अजीब अजीब बातें लिखते हैं और फिर कहते हैं फलस्तीन अब इसराइल को खत्म करके रहेगा। मैं आपकी दुआओं की बात नहीं कर रही, दुआ तो आप जो चाहे करें, लेकिन कम से कम बात तो सेंसिबल करें, बात तो सेंसिबल करें। कल एक मौलाना साहब कह रहे थे कि सहाबा खाली हाथ रोम और ईरान को शिकस्त दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते। भैया दो बातें दो बातें। पहली बात, सहाबा जैसी कुव्वत ईमानी नहीं है आपने, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं, सहाबा खाली हाथ नहीं गए थे, सहाबा वेल इक्विप्ड गए थे। बदर के सिवा कोई जंग खाली हाथ नहीं हुई। बदर को अल्लाह ने अपना मौजज़ा यौमुल फुरकान करार दिया, उसके सिवा कोई जंग खाली हाथ नहीं हुई। हर जंग में पूरी तैयारी से गए हैं मुसलमान। भैया तलवारें लेकर जाते थे, सामने वाला भी तलवार ही लेकर आता था, तीर तलवार नेजा और है था क्या मुसलमानों के पास। हाँ तादाद का फर्क था, वो रहा है, वो तादाद का फर्क हुआ तो ईमानी से मैनेज हुआ, लेकिन तैयारी मुसलमान पूरी करके जाते थे। ये छोड़ दे, वो ये बातें सिर्फ नहवों में अच्छी लगती हैं। वो है ना प्यारे बच्चों आओ तुमको सैर कराएं पाकिस्तान की, तो उसमें भी ना शेर आता है ये है सिंध, यहाँ पर राजा दाहिर का टोला था, यही मोहम्मद बिन कासिम अल्लाह अकबर बोला था, टूटी हुई तलवारों में क्या बिजली थी क्या शोला था। तो मैंने अपनी बच्चियों से कहा, मैं तलवार टूटियां नहीं सर मुसलमान ये झूठ है। यानी कि अरब से हिंद आ गए थे टूटियां तलवार लेकर। आप क्या समझते हैं सहाबा को, आप क्या समझते हैं, वेल इक्विप्ड लश्कर थे भैया, उस जमाने की सुपर पावर बनकर उभरे थे मुसलमान, कहीं हाली हाथ नहीं जाते थे, वेल इक्विप्ड जाते थे। बारूद का इस्तेमाल पहले मुसलमानों ने शुरू किया, कहां की बातें करते हैं। और एक बात याद रखें, यानी वो कहते हैं खालिद बिन वलीद खाली हाथ कले फतह करते थे, कभी नहीं किया खालिद, एक किला खाली हाथ फतह नहीं किया खालिद रजी अल्लाह तआला ने, हमेशा तलवारों से किया। पहली जंग जिसमें उनको सैफुल्लाह का खिताब मिला, जंग मूता, 8 तलवारें टूटी हैं उनके हाथ से। तुसी कहते हो खाली हाथ लड़ दे सकते, और आप देखें खालिद बेचारे जो है वो जब लड़ने जाते थे वो तलवार लेकर जाते थे। नहीं वो एक मौलाना साहब थे, यंग से थे, जज्बाती आदमी थे, बोल रहे थे। अच्छा एक जब खालिद लड़ने जाते थे हाथ में तलवार लेकर, तो मद्दे मुकाबिल क्या लेकर आता था, तलवार, क्लाशन कोफ तो नहीं लेकर आता था। अब अगर आप 1000 अफराद का दस्ता बना लें जिनके हाथ में तलवारें और सामने से एक क्लाशन कोफ वाला आ जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, पता लग गया ना। अब ये पंजाबी फिल्म तो है नहीं कि सुल्तान राय गंडासा लेकर आए और सबको मार के चला जाए, वो बचपन की स्टूपिड बातें। भैया ऐसे नहीं होगा। अल्लाह फलस्तीन को बचाने के लिए फिर अबाबीलों को भेजते, तुसी कारे लियो 1.5 अरब मुसलमान दुनिया थे, अबाबील ही भेजने थे, तो फिर इस्लाम कायम करने की क्या जरूरत थी। उस वक्त अबाबील इसलिए आए थे, क्यों आए थे, चले आप बताएं, काबे को बचाने के लिए अबाबील क्यों आए थे। हाँ तो आप भी तो कहते हैं अल्लाह का दीन है, अल्लाह खुद ही बचा लेगा, तो फिर अल्लाह क्यों नहीं सुनता, दीन तो अल्लाह का ही है ना।
उसके बाद काबे पर कितने मरहले आए हैं। जिस वक्त काबे के ऊपर खारजियों ने कब्जा किया है और उसमें से हजर अस्वद तक उठाकर ले गए, तब अल्लाह के पास अबाबील नहीं बचे थे। क्यों नहीं भेजा अल्लाह ने? जब काबे जी, उस वक्त जिस वक्त अबाबील आए थे दुनिया पर एक मुसलमान मौजूद था, तो अल्लाह ने अबाबील भेज दिए। हूं कि सारे मुसलमान मर गए ने, सारे के सारे आशिकाने रसूल इतने सारे भरे बैठे हैं, क्यों आए अबाबील? जब मर जाओगे सारे तब अबाबील आ जाएंगे, तब अबाबील आ जाएंगे। क्यों किया हमला? अपनी आजादी के लिए, अपनी आजादी के लिए। भाई सऊदिया को सुलह चाहिए, आजादी बगैर मरे हासिल नहीं होती जी। आप इन हुकूमतों से भी छुटकारा चाहते हैं ना, तो जाने दिए बगैर नहीं मिलेगा। जो आप चाह रहे हैं कि विन विन पोजीशन हो जाए, ना हमारा कोई मरे ना कुछ हो और हुकूमत चेंज हो जाए, नहीं होगी। उसके लिए भी आपको अपने बेटे मरवाने पड़ेंगे, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, जेलों में जाना पड़ेगा, तब जाकर ये हुकूमतें चेंज होंगी। और आप चाह रहे कि इसराइल कहे हो जी सॉरी, गलती से आपके फलस्तीन को कब्जे में ले लिया, ये मैंने वापस कर दिया। नहीं होना ऐसे। और सऊदिया के तो फायदे में है ना ये बात। सऊदिया की जो सियासी सुलह हो जाएगी वो तो ढोल बजाएगा, हुकूमत सऊदिया की बात कर रही। लेकिन फलस्तीनी क्यों मान ले? उनको क्या मिलेगा? वो तो उसी जेल खाने में पड़े रहेंगे ना। पूरे मुल्क, जो उनका पूरा मुल्क है, उस पर इसराइली राज करे और वो एक 100-150 गज लंबी पट्टी के अंदर बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी जेल में कैदियों की तरह जिंदगी बिता दे। पिछले 75 साल से तो झेल रहे हैं। वो किस बिना पर इस सुलह को तस्लीम करे? या बिल्कुल वो सही कहते हैं। देखें जी, मेरे घर में आकर आप मुझसे कुछ मांग कर ले ले, मैं दे दूंगी। आप किसी चीज पर हक जमाए कि ये कागज मेरा है, मैं वो भी नहीं दूंगी। मेरा कागज है, आप कैसे कहती है मेरा? लेना है मांग कर ले लो। अगर साथ रहने के लिए आते और रह जाते तो और बात थी, लेकिन उन्होंने तो वो अदब के ऊंट की तरह पूरा का पूरा खेमा हड़प लिया और एक पट्टी में फेंक दिया, और वो भी कैदियों की तरह। और उनके असासे, उनकी जमीन, उनका सब कुछ, और उन्हीं को मोहताज कर दिया। वो क्यों ऐसी सुलह को कबूल करें? ये सुलह है, ये तो फलस्तीनियों को बेचा जा रहा है। ये वैसी ही सुलह है जैसी कश्मीर वाले करना चाह रहे हैं, ये वैसी ही सुलह है जैसे हमारे हुक्मरान कर रहे हैं हमें बेचकर। तो वो सुलह कबूल नहीं है उनको, और होनी भी नहीं चाहिए। तो हमास क्यों बर्दाश्त करे? सही किया उन्होंने। झड़पें तो हो रही थी, उन्होंने फिर इसलिए तय किया कि बाकी लोग नहीं, झड़पें नहीं हो रही थी, इसराइल को तस्लीम ना कर ले। झड़पें नहीं हो रही थी, झड़पें वगैरह रुक गई थी, और अभी इसराइल के साथ सुलह की तैयारी हो रही थी। अगर सऊदिया वगैरह अल ऐलान उसे तस्लीम कर लेंगे तो बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा दुनिया। और अनकरीब सऊदिया कर भी लेगा, सऊदिया करने पर तैयार था। बस सऊदिया को अपनी ना वो बचानी थी, इज्जत। तो वो बचाने के लिए वो ये दिखा रहे थे कि फलस्तीनियों में और इसराइलियों में हो रही है सुलह। फलस्तीनियों ने बिल्कुल सही किया। अगर तुम लोगों को सुलह करनी है तो फिर अपनी इज्जत की कीमत पर करो, क्योंकि तुम इमामुल हरमैन बने बैठे हो ना। हरम के आलिमों की बात नहीं कर रही, सऊदी हुक्मरानों की बात कर रही हूँ कि तुम खादिम हरमैन शरीफैन बने बैठे हो ना। तो फिर तुम पूरी मुस्लिम दुनिया के अगर लीडर हो तो तुम एक मुसलमान मुल्क के साथ ऐसे नहीं कर सकते। सऊद बिन अब्दुल अजीज की सियासी गलतियों में ना ये बात भी शामिल है, याद रखिएगा। जिस वक्त ऐलान बाल्फोर हुआ है और उस वक्त जो तहरीक चल रही थी, कहीं ना कहीं पहुंच जाती शायद, लेकिन उस वक्त सऊद बिन अब्दुल अजीज ने जंग बंदी के लिए जाकर इनको आमादा किया। हो सकता है उनकी नीयत सही हो, अब वो नहीं रहे, मैं नहीं जानती, मगर उन्होंने कहा कि इस मामले को हम यूएनओ में उठाएंगे। उठाया भी, लेकिन नतीजा क्या निकला? 76 सालों। शायद उस वक्त जंग से कोई नतीजा निकल ही आता। तो अब ये जो यूएनओ की मेज पर बैठकर सिग्नेचर, इन्होंने सिग्नेचर करने, ये तो बैठे हुए महलों में जहां पर जो है टॉयलेट के पॉट भी सोने के हैं। इनको क्या पता फलस्तीनियों पे क्या गुजर रही है? जाकर देखें गजा की पट्टी में इनका हाल क्या है। आप फलस्तीन जा नहीं सकते, फलस्तीन का वीजा लगवा लें। आप इसराइल की इजाजत के बगैर जाएंगे कैसे? उनके पास ना कोई हवाई अड्डा है ना कुछ है। लैंड तो अपनी इसराइल में ही करना है ना। वो फिल्टर करते हैं, जिसको उन्होंने भेजना है उसको भेजना है, जिसको नहीं भेजना नहीं भेजना। कर लो, की करोगे? है क्या फलस्तीन के पास? उन्होंने अपनी जगह पर बिल्कुल सही कदम उठाया है। और उनके स्पोक्स पर्सन को मैं देख रही थी,
اتنے बावकार, इतने इत्मीनान से वो कहते हैं कि हमें किसी से कोई फौजी मदद नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारी सियासी मदद करें। मगर यहाँ सियासी मदद करने की भी ताकत किसी में भी नहीं है। देखिए सियासी मदद का मसला क्या है, सऊदिया ने बयान दिया है, सऊदिया ने इसराइल की मजम्मत की है, बस मजम्मत कर दी, और भी ममालिक ने हल्की फुल्की टूटी फुटी। हमारी तरफ से तो एक मजम्मती बयान, इस्लाम का कला पाकिस्तान, एक मजम्मती बयान हुकूमत के लेवल पर दिया है। सबब क्या है? वही जो मैंने आपसे कहा, कोई आपका चुना हुआ नुमाइंदा तो बैठा नहीं हुआ, लीडर इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि लीडर वो होता है जिसका एक विजन होता है। हाँ, अमेरिका ने तो खुलकर कहा है मैं तो इसराइल के साथ खड़ा हूं, ईरान ने खुलकर सपोर्ट की है, दुनिया के कई ममालिक ने सपोर्ट किया फलस्तीन को, बहुत सारे ममालिक ने किया है, और उनमें मैंने आपसे कहा सबसे मजबूत आवाज रूस और चीन की है। लेकिन हम कहां पर है? हम कहीं, हम खुद इस वक्त कहीं पर नहीं, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं। अब हम अवाम क्या कर सकते हैं ये देखें। अच्छा, अवाम जब एक मुल्क बनता है, आप टैक्स पे करते हैं, एडिशनल टैक्स पे करते हैं, साबुन की एक टिक्की पर भी टैक्स पे करते हैं, ये टैक्स कहाँ जाता है? हुकूमत के पास। हुकूमत क्या करती है? बजट बनाती है, बजट बनाती है, उस बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस पे जाता है? फौज पे जाता है। फौज आपकी वेल इक्विप्ड है, वेल ट्रेंड है, जंग करना किसका काम है? फौज का काम है ना। अगर फौज नहीं है तब तो जाए आप लड़े। जब एक इदारा बनाया हुआ है और उस पर हम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, और कर्ज जो हम पर सबसे ज्यादा चढ़ा है वो दिफाई बजट के चक्कर में ही चढ़ा है, हम सबसे ज्यादा उनको पे कर रहे हैं, तो फिर वो जाके लड़े ना, उनको किस दिन के लिए तैयार किया? जाए लड़े, ये फौज का काम, ये हुकूमत का काम। अब उन्होंने कैसे सपोर्ट करना है ये उनको पता होना चाहिए, हम उनको नहीं बताएंगे, उनका काम ये है। हुकूमत को ये पता होना चाहिए कि हमने सियासी प्लेटफॉर्म पर कैसे अपना रोल प्ले करना है। उनको किस बात के लिए पे करते हैं हम? वो हमारे सियासी रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उन्हें तनख्वाह पर रखा हुआ है, वो हमारे हाकिम नहीं है, वो हमारे नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव है हमारे। उनका काम है हमारी सोच को पॉलिटिकल लेवल पर जाकर लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाना, जिसकी किसी के अंदर सलाहियत नहीं। हल्के फुल्के जुलूस है, उनमें भी लोगों को पकड़ के अंदर करें। दूसरा बड़ा इंस्टीट्यूट है आर्मी, महाज पर जाकर काम करना उसका काम है ना। तो ये आर्मी को पता होना चाहिए कि किस तरह फलस्तीन की मदद होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, अंडरग्राउंड होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए ना, ये उनको डिसाइड करना चाहिए। हम तो अपना काम कर चुके हैं, हमने तो इंस्टीट्यूट खड़ा किया है, हम तो उसके लिए अभी तक पे कर रहे हैं, कितना टैक्स भर रहे हैं। उसके बाद ये जिम्मेदारी हुक्मरानों की है, फौज की है और हुकूमत की है। फिर अगर वो कोई प्लान बनाते हैं, जिस तरह जब बैतुल मकदस पर कब्जा हुआ था बीच में ईसाइयों का, और उसको छुड़ाने के लिए मुहिम चली थी, तो उस वक्त फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सब मुसलमान ममालिक से ये अपील की थी कि मुझे अफरादी कुव्वत से मदद दे। तो मुसलमान हुक्मरानों ने अपने अपने इलाकों में अनाउंसमेंट्स की थी कि रजाकार भर्ती हो आकर। फिर लोग रजाकाराना आकर वॉलंटियर्स भर्ती हुए, फिर उनको शॉर्ट कोर्सेज भी कराए गए, उस जमाने के मुताबिक लड़ना सिखाया गया, और उस तरबियत के साथ उसके लिए कंडीशन थी कि जवान हो, घुड़सवारी आती हो, और अगर किसी को निशानाबाजी या तीरंदाजी आती है तो उसे प्रेफर किया जाए। तो फिर जिनको जो चीजें आती थी उन्हें उन ट्रूप्स में डाल दिया गया, जिन्हें कुछ नहीं आता था उनको हल्की फुल्की ट्रेनिंग देकर बैकअप ट्रूप्स में रख दिया गया, और वो सब लोग जो है वो फिर भेजे गए सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास, और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन सबको यूज किया। मेन आर्मी तो एक ही थी, क्योंकि अफरादी कुव्वत बहुत ज्यादा थी, तो पीछे रजाकारों की एक बड़ी तादाद थी, मगर ये प्लान गवर्नमेंट्स का था ना, ये गवर्नमेंट्स का था। सब लोग जमा हुए, उस वक्त जैसी भी थी गई गुजरी थी मगर खिलाफत थी, तो सब लोग उसके तहत बैठे, इस मसले को डिस्कस किया गया, और ये डिसाइड किया गया कि आपस के इख्तिलाफात अपनी जगह पर,
मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हैं। तो फिर सारे मुसलमान ममालिक ने मदद की और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा मुझे माली मदद नहीं चाहिए, मुझे अफरादी कुव्वत चाहिए। तो सारे आलम इस्लाम से लोग आए और हुक्मरानों ने खुद भेजे, थोड़ी बहुत आर्मीज के भी ट्रूप्स भेजे थे, दस्ते भेजे थे, पर ऑब्वियसली कोई भी मुल्क बहुत ज्यादा आर्मी नहीं दे सकता अपनी, लेकिन ये कि फिर रजाकार भेजे थे। तो डिसाइड तो हुकूमत करेगी ना। अभी इक्का दुक्का अगर कोई जाते हैं, जैसे लोगों को कहते हैं किस लिए, कहाँ जाना है, आप फलस्तीन कैसे पहुंचेंगे, पहले पहुंचने का रास्ता बताएं। इसराइल से हुए बगैर तो आप जा नहीं सकते, तो इसराइल तो बड़ा इन्वाइट करेगा ना, आओ आओ पाकिस्तानी मुजाहिदों, आओ जाओ शाबाश, वो फलस्तीनी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसलिए भेजना है बच्चों के खिलाशे भी ना मिले, गायबाना नमाज जनाजा पढ़ो। मैं ये नहीं कहती, अगर आपका टारगेट अचीव होता है, आप महाज पर पहुंच सकते हैं, तो जाएं बच्चे, लेकिन आपके और फलस्तीन के दरमियान इसराइल हाइल है, ये हुकूमतें कर सकती हैं, ये इक्का दुक्का लोगों का काम नहीं है। लिहाजा ये हुकूमत को डिसाइड करना है। हम दो काम कर सकते हैं। पहली बात, दुआ, और सही दुआ। अल्लाह को ना डिक्टेट ना करे, अल्लाह जी उनके टैंक खराब कर दे, तो क्यों खराब करे अल्लाह उनके टैंक, तो उसे टैंक बढ़ा दे क्यों नहीं। अल्लाह जी तू जालिम इसराइलियों का फैसला कर दे, सब कुछ अल्लाह नहीं करना है। वैसे मैं कभी इस तरह की बातें, लतीफे पसंद नहीं करती, लेकिन जब भी ऐसी बातें थी मुझे याद आ जाता है, बहुत पुराना एक मैंने पढ़ा था, लतीफा तो नहीं है, लतीफ बात इसको कहना चाहिए, कि अल्लाह ताला फरिश्तों के साथ एक मीटिंग में थे, तो एक फरिश्ते ने आकर इतला दी कि अल्लाह जी पाकिस्तान भारत की जंग छिड़ गई है। तो अल्लाह जी ने कहा अच्छा फिर मैं उधर चलता हूँ। तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह जी आप क्यों, हम है ना, वी विल हैंडल। अल्लाह पाक ने कहा नहीं, पाकिस्तानी ने सारा कुछ मेरे थे छिड़े, मैं आप ही जाना पड़ेगा। हम हर चीज हम चाहते हैं, हम पता नहीं क्या चाहते हैं। अल्लाह है ना। तो लिहाजा फजूल दुआएं मांग कर ना, मैं वाकई मजाक नहीं करती, मैं इतनी इरिटेट होती हूँ, आपका रब कितना इरिटेट होता होगा। मैं अबाबिली क्यों भेजूं, इनको इतनी अकल नहीं है। अगर अबाबिली भेजने थे तो मैंने अपने नबी को इतनी मुशक्कत में क्यों डाला, कुरान क्यों उतारा। अगर सब कुछ मैंने ही करना था तो इनको उम्मत किस लिए बनाया, इनको जराए किस लिए दिए। तो लिहाजा दुआ जरूर मांगे, दुआ से बड़ा कुछ होता है, लेकिन दुआ सही वाली मांगे। अल्लाह से मदद मांगे, मुसलमानों के हालात बदलने की मदद मांगे, अच्छे लीडर्स मांगे जिसकी हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, और कसरत से दुआ मांगे, क्योंकि जी दुआ हालात बदल देती है। और इसराइलियों के फलस्तीनियों के लिए दुआ मांगेंगे ना, तो हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। होगा ऐसे वजह, पहले अपने हक में पूरी हाँ अपने बहन भाई के लिए, जो अपने मुसलमान बहन भाई के लिए दुआ मांगोगे, फरिश्ता एक मुकर्रर कर देता है अल्लाह, जो दुआ मांगता है अल्लाह ये जो उसके लिए मांग रहा है इसको भी दे दे। तो जब कहेंगे अल्लाह फलस्तीन वालों को अच्छे हुक्मरान अता फरमा, तो फरिश्ता कहेगा अल्लाह इन्होंने भी दे दे, और फलस्तीनियों से ज्यादा हमें जरूरत है। भाई वो तो एक हालत जंग में है ना, हमारे तो सामने भी अपने खड़े हैं। अभी देखें, ये अभी जो स्कूलों को लेकर तमाशा हो रहा है, मार खाने वाले भी हमारे उस्ताद हैं और मारने वाले भी हमारे ही बेटे हैं, किसको क्या कहें। तो हमारा मामला बड़ा अजीब है, मजहब का खेज है। तो हमें भी बहुत जरूरत है, और हमें इससे भी ज्यादा जरूरत है कि फलस्तीन तो हाथ से जा चुका, इससे पहले कि पाकिस्तान हाथ से जाए हमें कोई अच्छे हुक्मरान मिल जाए, तो उनके लिए दुआ अमान अता फरमा, उनके सदके हमें भी मिल जाएगा है। तो उनके लिए दुआ मांगे, पहली बात। दूसरी यह बात जो आप कर सकते हैं और आपने करनी है, उनके लिए हर फोरम पर आवाज उठाओ, जिस फोरम पर आप हो उनके लिए आवाज उठाओ। आवाज उठाना बड़ा अहम काम है जी, आवाज उठाने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उनके लिए आवाज उठाएं, हर फोरम पर, हर जगह पर उनके लिए आवाज, ठीक है। इससे इंशाअल्लाह वाकयात में बड़ी अच्छी चेंज का अल्लाह से तवक्को है। बाकी जो काम है ना, यूएनओ में बात उठाना, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात बाइकॉट करना 100%, फलस्तीनियों की मदद करना, उनको सियासी मदद देना, उनको माली मदद देना, उनको फौजी मदद देना, फौज भेजनी नहीं भेजनी ये डिसाइड करना, आलमी इस्लाम को एक मरकज पर जमा करना। आज भी ये बात उठाई जा सकती है ना आलमी इस्लाम में, कभी झगड़े अपनी अपनी जगह, तुम शिया हम सुन्नी, ठीक है, लेकिन है तो मुसलमान ना, बैतुल मकदिस तो सबका है ना, बैतुल मकदिस की कॉज पर इकट्ठे हो जाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी इकट्ठे कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते।
जज्बा होगा तो जरूर इकट्ठे होंगे, ऐसी भी बात नहीं। तो बात यह है कि उन सारी चीजों को इकट्ठा किया जाए, लिया जाए, इसके ऊपर फिर गैर मुस्लिम ममालिक जो है, जो हमारी हिमायत में है, उनकी मदद ली जाए, सारा कुछ किया जाए, बड़ा कुछ हो सकता है। और अगर फिलहाल हम जंग नहीं भी कर सकते तो कम से कम गजा की पट्टी में मौजूद फलस्तीनियों के इंसानी हकूक तो दिला सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। मगर ये काम होंगे हुकूमती प्लेटफॉर्म पर। मगर उसके लिए सबसे अहम जरूरत क्या है? हुकूमत होना। पहले हुकूमत तो हो हमारी कायम। हमारा तो पाकिस्तान पिछले 2.5-3 साल से बगैर हुकूमत के सच्ची मुच्ची अल्लाह तवक्कल चुनी जा रहे हैं। तो लिहाजा पहले हुकूमत कायम होगी फिर काम, यही तो मसला है। अल्लाह आसानी का मामला फरमाए, आमीन। तो ये तो है अभी तक की सूरत हाल। अब एक दो और बातों पर मैं आपसे बात करती हूँ। यहाँ यहाँ इन सियासी सिनेरियो में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कहें। सियासी तो अभी तो कुछ नहीं कर रहे। संडे वाले दिन मेरा दिल कर रहा था जो सारी इस क्लास की खवातीन इकट्ठी होगी ना, हमारे इर्द 8-10 पॉइंट है, वहां जाके जरा दुकानदारों से बात करेंगे, ये सारी इसराइल के प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो हम कर सकते। ये काम भी एक्चुअली गवर्नमेंट के करने का है। नहीं, हम उनको जरा एहसास तो दिलाए ना। नहीं, मुझे बताएं, ज्यादा तो एक बंदा कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि ये इसराइली प्रोडक्ट है कि नहीं? आपके पास तो संजीदा इंफॉर्मेशन भी नहीं है। नहीं, ये जो बाजार हमें नेट पे मिल रही है, पेप्सी और ये हेड एंड तो शोल्डर, पहले ये चेक दो करो चीजें वो है भी नहीं कि नहीं। उसमें नहीं नहीं ये बता सीरियस। रहे थे कि इसराइल की दो किस्म के हैं। एक इसराइली जो है जिसकी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, और एक जो इसराइली है उसकी ये प्रोडक्ट है। वहां भी ये बता रहे थे कि ये जो है ना 7 to 9, ये वाला जो इसराइली है बहुत शदीद है मुसलमानों का। तो इसकी प्रोडक्ट देखें जी, इसराइली होना और सहूनी होना दो अलग अलग बात। जैसे मुसलमान होना और खारजी होना दो अलग अलग बातें। इसराइली होना और सहूनी होना दो अलग अलग बातें। यहूदियों में एक बड़ी तादाद तो वो है जो सेकुलर है, उन्हें दीन से कुछ लेना देना नहीं, जैसे हमें दीन से कुछ लेना देना नहीं, हमारी तरह है वो भी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक उनका भी एक महदूद तबका है जो अपने खुद साख्ता दीन के लिए सब कुछ लुटाने को तैयार है, उन्हें सहूनी कहा जाता है। ठीक है, तो हर इसराइली सहूनी नहीं है। और हर जो है इसराइली आप उससे बहुत सारे इसराइली आप देखें, खुद यहूदी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं इसराइल के खिलाफ। इसराइल ठीक के है, अंदर से लिहाजा मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। दूसरी बात यह है, पहले तो आपकी गवर्नमेंट आपको बता सकती है कि कौन सी प्रोडक्ट्स इसराइली हैं कौन सी नहीं। जो नेट पर इंफॉर्मेशन है वो कतई काबिल भरोसा नहीं। अब डालडा जो है वो जी यहूदियों का है। और सुनो, ब्रिटिश ब्रिटिश जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ब्रांड लॉन्च की थी। तो ये तो आज भी बरतानवी है। बहरहाल मैं ये बहस नहीं कर रही, ये तो हुकूमत ही जांच सकती है। हुकूमत के पास जराए होते हैं ना, डेटा उनके पास होता है ना, मेरे पास है ना आपके पास है। तो सुनी सुनाई बातें हैं, बस जिसका जो जी चाह रहा है कर रहा है उठ दुआ के। कर सकते हैं और अपनी कॉज को सपोर्ट करें, अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाएं। हम यही दो काम कर सकते हैं। मैं आपको संजीदगी से कहूंगी फंड्स भी मत दें। आपको पता है कौन सी तंजीम वहां जाकर काम कर रही है? हमास वालों से डायरेक्ट राब्ता ढूंढ लेना, फिर हमास वालों को फंड दे दें। तो यहाँ जितने लोग फंड जमा कर रहे हैं सारे खानगी, सारे खानगी। हाँ, वहां कहाँ पहुंचाएंगे? और मेरा फिर सवाल वही है, सबने जाना है इसराइल के थ्रू, तो इसराइल जाने देगा पैसा? जाने देगा? तो फिर इन्होंने कहाँ पहुंचाना है पैसा? झूठ बोलते हैं सारे, खुद खा जाना है। लिहाजा इनको फंड मत, सिर्फ आप वो दो काम करें जो आप कर सकते हैं। हाँ, जब आपका हमास के साथ कोई राब्ता बन जाए, हिजबुल्लाह वालों के साथ कोई राब्ता बन जाए, तब दे देना। और तो हमारे पास अभी कोई सोर्स नहीं है। अल्लाह रब्बे करीम हमारे हाल पे बहुत ज्यादा रहम फरमाए। अभी परसों ये नेट और ये मखदूम के साथ फलस्तीन के तर्जुमान है डॉक्टर खालिद मखदूमी। जी जी, उनका वो मेरे कजन है, और वो कितनी वो मेरी कजन के लिए है। हम्म तो काफी अच्छा पाकिस्तान है, आपको ईरान है, पूरी फैमिली ईरान में है। उसे ये भी इसको एक एक पता नहीं सकते, और ये मैंने ये भी नहीं पता।
अच्छा जी अब थोड़ा सा मस्जिद अक्सा को डिस्कस करते हैं। मस्जिद अक्सा क्या है, कैसे बनी, कब बनी, इस थोड़ी सी बात के बाद इंशाल्लाह फिर हम बात खत्म करेंगे। मस्जिद अक्सा, ये तरतीब इसके लिए कुरान ने इस्तेमाल की है, क्योंकि अक्सा का मतलब होता है दूर, तो ये दूर वाली मस्जिद है ना, तो इसे मस्जिद अक्सा कहते हैं। कुरान ने इसे मस्जिद अक्सा कहा। इसका एक नाम बैतुल मकदिस भी है। मुकद्दस नहीं है ये लफ्ज, हमारे उर्दू में आमतौर पर मुकद्दस कहते हैं, बैतुल मकदिस। और जो है इसका एक नाम मस्जिद ईलिया भी है। ईलिया किसको कहते हैं? अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है जी, ईल से, अल्लाह वाली मस्जिद। ईलिया का मतलब होता है अल्लाह वाली, अल्लाह वाला, तो मस्जिद ईलिया मतलब अल्लाह वाली मस्जिद, ये भी इसका एक नाम। और इसे किबला भी कहा जाता है, मस्जिद किबला, मस्जिद मुसल्ला भी कहा जाता है। हम इसे एक और नाम भी देते हैं, किबला अवल। सही है, सही है, सही है, सही नहीं है। बारकल्लाह फी। आपका किबला पहले बैतुल्ला था या कि मस्जिद अक्सा? काबा था ना। फिर आप आए मदीना, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और 17 महीने के लिए बैतुल मकदिस जो है वो किबला बना। फिर दोबारा किबला बन गया बैतुल्ला। तो किबला अव्वल तो बैतुल्ला ही था, किबला आखिर भी बैतुल्ला ही है, किबला औसत है। हाँ, तो टेक्निकली ये तरतीब गलत है। बहरहाल कहने में कोई गुनाह नहीं है, ये कोई गुनाह सवाब का मसला नहीं है, ये वैसे ही मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये अगर आपने बात ज़हन में आया कि किबला अव्वल हम वैसे ही इसको किबला तो शुरू से हज़रत आदम के ज़माने में अल्लाह ने बना दिया था। बिल्कुल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में बैतुल्ला रहा, फिर उसके बाद किबले तब्दील हुए मुख्तलिफ फॉर्मों के लिए। एक जमाना तवील वो गुजरा दुनिया में जब बैतुल्ला नहीं था, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्ला को दोबारा बनाया है, तो फिर तब से किबला हमारा बैतुल्ला ही रहा, अरब वालों का किबला बैतुल्ला ही रहा। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तब से चला आता था। और जब मक्का में थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैतुल्ला जो था वो किबला था। फिर जब मदीना आए तो अल्लाह ने आजमाइश में डाला, अरबों को भी और यहूद को भी। यहूद बाद में आजमाए गए ना, यानी कि पहले तो बैतुल मकदस किबला बना दिया गया, तो वो बड़े खुश हुए, बड़े उछले, और अरबों की आजमाइश हो गई। जो अल्लाह को पूजता है वो खड़ा रहेगा, जो सिमतों को पूजता है वो घबरा जाएगा। फिर ये टाइम 17 महीने चला, अरब तो मुस्तहकम रहे, लेकिन फिर अल्लाह पाक ने किबला जो है दोबारा बदल दिया। अल्लाह ने दोबारा किबला बदल दिया, तो फिर यहूद नहीं सह पाए, है ना। हमेशा कंफ्यूज रहे कि किबला वो तो काबा था कि बदला गया। हाँ, कंफ्यूज मुझे कहीं से आंसर नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह 17 महीने के लिए सिर्फ चेंज हुआ, और इसका मकसद सिर्फ आजमाइश थी। पहले जब बैतुल मकदस बनाया गया किबला, तो ये आजमाइश अरबों की हुई कि अरब जो है वो कितना इस्तकामत दिखाते हैं। अब अरबों ने दिखा दी, अरब उसमें पास हो गए, वो दीन पर खड़े रहे, बातें भी सुनी, अपनों से बातें सुनी। मक्का वालों ने तो खूब मजाक उड़ाया कि देखा लो, जैसे ही मोहम्मद निकला मक्के से उसने किबला बदल दिया, आबाई किबला भी छोड़ दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये बहुत बड़ा टॉन्ट था अरबों के लिए, मगर अरबों ने इस्तकामत से, मुसलमानों ने, मुहाजिरीन और अंसार ने बड़ी हिम्मत से इसको सहा है। फिर 17 महीने के बाद जब किबला दोबारा तब्दील हुआ अल्लाह के फजल से, और किबला इब्राहिमी किबला बना, तो यहूद ने तो खुद ही रोला डाल दिया, लो 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 लो, इसने तो फिर किबला बदल दिया, और मुनाफिक देखे सामने आ गए। बस यही आजमाना मकसूद था। अल्लाह ने कहा भी, हमने इसको किबला सिर्फ इसलिए बनाया कि हम देखे कौन नबी के पीछे चलता है, कौन उल्टे पैरों फिर जाए। तो ये अरबों की भी आजमाइश हुई थी, कुछ अरबों ने भी छोड़ा था दीन, पर वो बहुत महदूद, चंद एक 4-5-6 लोग के बीच में से, तो वो मामला बड़ा नहीं। लिहाजा अंसार और मुहाजिरीन की अक्सरियत जमी रही, मगर यहूद तो सारे के सारे बफर गए, और इसको इन्होंने बहुत बड़ा मसला बनाया। तो किबला अव्वल भी बैतुल्ला था, किबला आखिर भी बैतुल्ला है, बीच में किबला औसत था। अब ये सवाल बनता है कि ये जी जी रेफरेंस से ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं मदीना, हम्म तो 17 माह के लिए हमने उसमें तो शायद भाग पढ़ा है उसके बारे में। तो ये सिर्फ यहूद पहले से जो थे यहाँ पे मौजूद, वो पहले किबला को फॉलो करते, यहूदियों का किबला तो एक अरसे से बैतुल मकदस था, मतलब वो वहाँ पे रहते हुए वो वही किबला बैतुल मकदस था, उनका किबला एक जमाने से बैतुल मकदस था। मुसलमान तो भी वहाँ पे थे नहीं, तो वो भी फिर उसी को फॉलो करते थे। अदब
نہیں नहीं जो मदीना वाले थे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वाले भी अरबों की बात कर रहे हैं, औसत हिजरत की बात कर रहे हैं, वो तो बैतुल्लाह को फॉलो करते हैं, अच्छा वो बैतुल्लाह को फॉलो करते वो दीन इब्राहिमी पर थे। वो अलग बात है कि दीन इब्राहिमी ऐसा हो गया था जैसे आज हमारा इस्लाम हो गया हुआ है, लेकिन बहरहाल वो दीन इब्राहिमी पर थे। तो दीन इब्राहिमी तो फिर किबला इब्राहिमी, ठीक है। जी जी, जब नबी अकरम वसल्लम मदीना आए हैं ना, तो अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अब किबला बैतुल मक़दिस होगा। ये बात कुरान में उस वक्त उतरी थी, लेकिन वो फिर आयत उठा ली गई, नसख हुई उनका, और जो है हदीस में इसका बयान बाकी रहा, ठीक है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि किबला हमारा चेंज हो गया, तो फिर उस किबले की तरफ मुंह करके इबादत होने लगी। लेकिन आप खुद भी बहुत ज्यादा दुखी हो गए कि अपने मुल्क में अपना किबला छोड़ के दुखी थे, दुखी थे। आप बहुत दुआ, बहुत बार क्यों ऐसे आप दुआ करते थे? क्योंकि आपके जद्दे अमजद तो बहरहाल इब्राहिम थे, और जो किबला इब्राहिमी है वो किबला इब्राहिमी। और फिर एक सबसे अहम बात ये है, यहूद को जो बड़ी खुशी हुई थी ना किबला चेंज होने की, आखिरी नबी का किबला किबला इब्राहिमी होना था, ये डिसाइडेड है, ये जानते। अल्लाह ने खुद कहा, अल्लाह ने कहा ये अहले किताब को अच्छी तरह पता है, यही हक है। आखिरी नबी ने फिर दीन इब्राहिमी खड़ा करना था ना, तो किबला इब्राहिमी ही किबला होना था। तो उनको ये उम्मीद बंदी कम वक्तों को, हालांकि वो जानते थे कि आप आखिरी नबी है, मगर ये उम्मीद बंदी कि चूंकि इसने किबला चेंज कर दिया, हो सकता है दूसरा कोई नबी आना हो जो हम में से आ जाए। वो बड़े बदबख्त थे और अभी भी हैं। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानते थे मैं आखिरी नबी, तो आप तड़प रहे थे कि अल्लाह, आप तो जानते थे मुझे यही किबला मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आप तड़प रहे थे कि अल्लाह हमें दीन इब्राहिमी पर रखे, हमें किबला इब्राहिमी कर दे। फिर अल्लाह पाक ने इस आजमाइश से गुजार कर, आजमाइश मैंने कहा ना अरबों यहूद की थी, तो अरब इस टेस्ट में भी पास हुए 100% मार्क्स के साथ। अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर चेंज किया था, बिल्कुल तो बिल्कुल। और उसमें आप देखें कि उसमें वो गिरोह रहा जिन्होंने उसी किबले की तरफ मुंह करके नमाज मुकम्मल की। तो ये बड़ी शदीद आजमाइश थी, बहुत शदीद आजमाइश थी। तो बहरहाल हमारा किबला अव्वल और किबला आखिर जो है वो बैतुल्लाह है। अच्छा, अब बैतुल मकदिस क्या है, यानी कि कितनी की बिल्डिंग है? देखा है कभी नेट वगैरह पे? जा तो नहीं सकते, देखा है कभी? हाँ, तो कैसा है? ये दिखाते हैं जो मतलब ये आजकल तस्वीर आ रही है, पहले तो वो उन्होंने कहा कि वो तो एक और ही तस्वीर दिखा रहे हैं, वो लेकिन वो नहीं थी, हाँ गोल्डन दिखा रहे थे। तो पहले उन्होंने वो डिक्लेयर कर रहे थे, फिर इन्होंने नेट पे देखा, मैं तो जाहिर है मैंने भी नहीं देखा। हाँ। अल्लाह कभी वो वक्त लाए कि हम जा सकें, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा बहुत के कोई छोटी सी जगह ही है जो कह रहे हैं कि ये बैतुल मक़दस है जो ओरिजिनल है, इतना ज्यादा नहीं। जी, आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं बस यही कि यही अच्छा, ये ना असल में जब हम बैतुल मक़दस लिखते हैं ना, तो वो सिर्फ वो जो एक रूम है दिखाते हैं। एक्चुअली बैतुल मक़दस इज अ कंप्लीट कंपाउंड ऑफ हरम। जिस तरह मक्का का हरम है, मदीना का हरम है, उसका भी एक वो पूरा हरम है, वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा कंपाउंड है। वो पूरा कंपाउंड ही जो है वो असल में बैतुल मक़दस इनफैक्ट। अब उसके अंदर दो अहम कमरे, ठीक है, वो सारा जैसे आप हरम में जाते हैं सारा ही हरम है, मस्जिद नबी में जाते हैं सारी मस्जिद नबी है, लेकिन फिर उस पर एक खास जगह आ जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का कमरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुफा, साबे सुफा का सुफा की जगह। तो वो फिर आप उसको ढूंढते हैं ना, तलाश करते हैं। लेकिन वैसे जब आप लिखते हैं या कहते हैं मस्जिद नबवी, तो सारा कंपाउंड है। इसी तरह से मस्जिद अक्सा इज अ कंप्लीट कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारे हिस्से हैं और ये काफी बड़ा है। इसके अंदर दो अहम कमरे हैं, एक गोल्डन डोम है और एक ग्रेइश ग्रीन डोम है, गुंबद है। एक गोल्डन कलर का है और एक जो है वो ग्रेइश ग्रीन है, ठीक है। हाँ, सीमेंटेड सा कलर है, लेकिन एक्चुअली वो सीमेंटेड नहीं है, वो ग्रेइश ग्रीन है। लेकिन वो तस्वीरें लेते हैं ना, तो वो धूप वगैरह पड़ रही होती है तो वो आमतौर पर ग्रे नजर आता है। तो वो जो गोल्डन डोम है वो कुब्बतुस सखरा है जी, सखरा चट्टान को कहते हैं स्वाद के साथ, कुब्बतुस सखरा, डोम ऑफ द रॉक,
चट्टान के ऊपर बना हुआ गुंबद, ठीक है। और जिसे आप मस्जिद अक्सा कहते हैं, वो जो है वो ग्रीन वाला, ग्रे वाला डोम जो है, गुंबद जो है, सुरमई सा गुंबद जो है, वो मस्जिद अक्सा, ठीक है। अब एक्चुअली ये सारी मस्जिद अक्सा है, मैं बात फिर दोहरा रही हूँ, ये 2 रूम है, ठीक है। वो रूम पहले से बना हुआ था, ये रूम बाद में बना, गोल्डन डोम वाला, गोल्डन बाद में बना, गोल्डन वाला बाद में बना। दीवार के जिसके पास खड़े थे, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। हाँ, मैं वही बताना चाह रही। आप उस दीवार को देखें ना, वो जो वेस्ट वॉल है, उसको वेलिंग वॉल भी कहते हैं, उर्दू में कहते हैं दीवार गिरिया, ठीक है। और अरबी में कहते हैं हाइतुल बुर्राक, बुराक वाली दीवार, लंबी दीवार है। वो जो दीवार है ना, एक्चुअली कंपाउंड की आउटर दीवार थी, हैकले सुलेमानी की दूसरी 4 दीवारी की, हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर की। पहला हैकल जो तामीर हुआ था वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। अब यहाँ पर रुककर पहले एक चीज समझे, जिस तरह मस्जिद नबवी की असल पहली मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, फिर उस पर तौसी कराई उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, फिर उस पर तौसी कराई अमीर मुआविया ने, फिर उस पर तौसी कराई 2-3 बार उमवियों ने, फिर अब्बासियों ने, फिर उस्मानियों ने, और ये फैलता गया। इसी तरह ये मस्जिद एक्चुअली कब बनी, पहली मस्जिद कब बनी? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसका हैकल बनाया था, इनकी एक बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन क्या उससे पहले यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी? सोचने की बात है ना। जब हजरत मूसा आए हैं तो सही बात है, बनी इसराइल के लिए तभी तो बनी इसराइल का असल तो वहीं से वजूद है। हाँ, सोचने से जवाब मिलते हैं। तो पहली मस्जिद बनी होगी वहाँ पे फलस्तीन में, वो हजरत मूसा के जमाने में तो नहीं बन पाई ना, क्योंकि हजरत मूसा के जमाने में फलस्तीन पर काबू नहीं पा सके। हजरत दाऊद के जमाने में बन जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, वाकई बन जानी चाहिए। हजरत दाऊद के जमाने में तो कब्जा हो चुका था, हजरत तालूत के जमाने में हो चुका था, तो क्या कोई मस्जिद नहीं होगी? इससे भी थोड़ा पीछे जाए, उनके जमाने में फलस्तीन में नहीं रह पाए, वो हजरत मूसा की बात थी ना। उससे पहले फिर हजरत याकूब थे, तो हजरत याकूब थे। यू हैव गॉट द पॉइंट। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने अरब में आकर मस्जिद तामीर की, अल्लाह ने हुक्म दिया था, ठीक है, काबा तामीर किया। अब फलस्तीन में अपनी जाती इबादतगाह तो सबकी थी, लेकिन ऐसी कोई सेंट्रल मस्जिद हमें नहीं मिलती। याकूब के बारे में जिक्र मिलता है तौरात में कि याकूब को खुदा ने हुक्म दिया कि मेरे लिए घर बना, और याकूब ने खुदा के लिए घर बनाया। अब यहूदी बहस ये करते हैं, और यहाँ पर आकर ये बात दब जाती है। यहूदी कहते हैं असल में ये काबा था, वो काबा नहीं था जो अरब में, ठीक है। अब यहाँ पर आकर मुसलमान सिर्फ इस चीज पर जोर लगाने लग जाते हैं कि भाई नहीं, वो काबा वो है, काबा तो वही है जो हमारा मक्का में, वो तो उसमें तो 2 राय नहीं है, मगर वो दूसरी बात को इग्नोर कर जाते हैं, और वो ये है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मस्जिद कौन सी बनी? आपने कहा काबा, कहा गया उसके बाद आपने कहा बैतुल मक़दिस। सहाबा ने कहा दोनों के दरमियान कितने सालों का फर्क है? आपने कहा 40 सालों का। अब इस पर बड़ी बहस होती है कि ओ हो ऐसे हदीस गलत है। हदीस नहीं गलत है, आपका हिसाब गलत है। आप ये बहस लेकर बैठ जाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई वो काबा नहीं है, वो तो हमें पता है, वो तो इस्माइल ने बनाया था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम ने जो मस्जिद बनाई वो बैतुल मक़दिस तो थी ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल कहा। अब आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबा बनाया है, इसहाक पैदा हो चुके थे। अब अगर इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी 20 साल की उम्र में भी हुई हो तो उनके बेटे हुए, आपको पता है तब तो कम उम्र में शादियां थी, बच्चे भी जल्दी होते थे, तो यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो 18-20 साल के हो गए। तो अगर इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 5 साल भी रही हो, फर्ज करें, हालांकि इसहाक वैसे बड़े हो गए थे, लेकिन इसहाक की उम्र 5 साल भी रही हो जब काबा बना है, तब भी इसमें 35 साल का ही अरसा बनता है। और कुरान बताता है कि हमने इब्राहिम को कुर्बानी के सिले में इसहाक भी दिए और याकूब भी दिए, नाफिलातन जायद। तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि याकूब अलैहिस्सलाम पोते हैं,
इसका मतलब है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पोते की जवानी पाई थी, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं हमने याकूब भी दिए नाफिला, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तवील उम्र भी पाई, बूढ़े भी हुए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने वहां पर एक मस्जिद बनाई, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। और उन्होंने, हो सकता है कि फाउंडेशन स्टोन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रखवाया, क्योंकि तब तो बूढ़े हो गए थे इब्राहिम, वो तामीर तो नहीं कर सकते थे, लेकिन ये एन पॉसिबल है कि उन्होंने कहा हो कि भाई आप बुनियाद रख दें तो मैं बना देता हूँ, और ना भी रखवाई हो तो खुद याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर है। तो ये बात तो रैत जो कहती है कि याकूब को खुदा ने हुक्म दिया कि मेरे लिए घर बना, और याकूब ने बनाया इब्राहिम के मशवरे पर या इब्राहिम के इशारे पर, तो ये बिल्कुल इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं। ये हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को क्लियर साबित करती है। 3 चीजें हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि मस्जिद अक्सा जो है वो बैतुल्लाह के 40 साल बाद बनी, और कुरान का ये कहना कि हमने इब्राहिम को इसहाक के साथ याकूब भी अता किए इजाफी, और साथ तौरात का ये बयान, इन तीनों चीजों को जब हम साथ रखकर देखते हैं तो ये पता चलता है कि जब याकूब जवान हुए तो उन्होंने एक मस्जिद बनाई, जिसका हो सकता है फाउंडेशन स्टोन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखा। ये 40 साल की बात ऐसे तो वहीं फलस्तीन में थे ना। क्या चीज पहले बनी 40 साल बाद? बैतुल्ला के बनने के 40 साल बाद, हजरत इब्राहिम ने जब दोबारा बुनियाद रखी। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है ना, उसके 40 साल बाद 40 साल कहाँ से? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मक्का में काबा तामीर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा उस वक्त तक दुनिया में 2 मज़ाहब थे ना, वही वाले, ईसाइयत और यहूदियत, इन दोनों में मरकजी इबादतगाह का तसव्वुर नहीं रहा था। ये लोग जाती इबादतगाहें बनाते थे और उनमें इबादतें करते थे। ठीक है, अब अल्लाह पाक ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि मेरे लिए मरकजी इबादतगाह बनाओ, वो काबा बनी। तो फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, उनका आना जाना तो रहा लेकिन स्टे उन्होंने फलस्तीन में किया। फलस्तीन में तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसके 40 साल बाद बैतुल मक़दिस बना। तो रैत कहती है कि याकूब ने खुदा के कहने पर फलस्तीन की बाबरकत सरजमीन के ऊपर जो है मस्जिद बनाई। तो इन सारी बातों को बिल्कुल ये एक दूसरे से पैचअप होती है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने पहला एक कमरा बनाया, तो जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कमरा बनाया था। अच्छा, हरम की हद है ना, इधर भी तो हरम की हद है, ये भी तो हरम है। 3 हरम है ना हमारे, मक्का, मदीना और मस्जिद अक्सा यरूशलेम। अब मस्जिद अक्सा की भी हदूद है ना, उन हदूद के अंदर जो भी बिल्डिंग बनेगी वो हरम कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होगी, लिहाजा वो भी हमारा हरम शरीफ है। तो उन्होंने उसको बनाया और उनकी वजह से अल्लाह करीम ने उसको भी हरम का मकाम दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दुनिया में 3 मसाजिद है जिनके लिए तुम कजावे कसा करो, बैतुल्ला, मेरी मस्जिद और बैतुल मक़दिस। बाकी किसी मस्जिद के लिए कजावा नहीं कसना, इल्म के लिए जहां चाहे जा, वो अलहदा मस्जिद। तो पहला कमरा जो बना था वो याकूब अलैहिस्सलाम से बना था, लेकिन बाकी हरम की हदूद थी, खुला था, जैसे बैतुल्ला के इर्द गिर्द सब कुछ खुला था। फिर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना आया है, अब देखें हजरत उस्मान का दौर आया, उन्होंने वुसअत नहीं कराई ना। जब उमवी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने फिर मस्जिद को पुख्ता कराया, सारा कुछ कराया, सिर्फ आपकी कब्र के कमरे को नहीं छेड़ा, बाकी सारी मस्जिद को पुख्ता कराया। बाद में फिर फर्श डलवा दिए। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, हर कोई अपना हिस्सा डालना चाहता है। आज भी अब जब हरम में जाए कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उनका भी तो हरम है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब वक्त आया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जिन थे ना उनके पास, उनको कब्जे में दिए गए थे, तो उन्होंने फिर जिन्नों से अजीमुशान कमरा बनवाया। हैकल कहते हैं मजबूत किले को, जैसे आप किला कहते हैं। तो उन्होंने एक अजीमुशान कमरा बनवाया, जिसके बारे में ये आता है यहूदी रिवायतों में कि उन्होंने हीरे जवाहरात भी लगवाए होंगे। हमने नहीं मस्जिद कुर्तबा में सोना लगवाया था, बंदों से ही लगवाया था। मस्जिद कुर्तबा में जो है 1.25 टन वजनी सोने का जो है झूमर लटकाया गया था। शाही किले की छतों पे भी तो थे। हाँ जी, वो जो है शीशे वाला रूम क्या कहते हैं उसे, शीश महल में लगाए गए थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उनकी रोशनी वो हर तरफ फैलती थी। तो उन्होंने हैकल बनवाई, इनके इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और कमरा बनवाया, ठीक है, जो कि हैकल कहलाया, यानी हजरत सुलेमान से था तो हैकल सुलेमानी। और फिर उन्होंने कंपाउंड के गिर्द वॉल वगैरह बनवाई, सारा कुछ।
اب وہ جو انہوں نے تعمیر کرائی تھی وہ بخت نصر نے تباہ کر دی. بخت نصر نے آگ لگا کے سب کچھ جلا دیا. وہ اصل جو عمارت بنائی تھی حضرت یعقوب نے وہ بھی ظاہر ہے گئی, حضرت سلیمان کی بنائی بھی گئی, سب ختم ہو گیا. پھر انہوں نے جب دوبارہ ان کو سائرس اول نے ذوالقرنین نے آباد کرنے ہونے کی اجازت دی ہے, پھر انہوں نے وہاں پر دوبارہ مسجد شستیر اپنی کھڑی کی. ٹھیک ہے, ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا, ویسا تو نہیں بنا سکے عظیم الشان, لیکن انہوں نے اس کی جگہ پر بھی بلڈنگ بنائی, مسجد اقصی کو بھی دوبارہ تعمیر کیا. پھر ٹائٹس رومی نے ان کی حرکتوں سے تنگ آ کر ان کو پھر اکھاڑ پھینکا اور سب کچھ تباہ کر دیا. پھر اس کے بعد یہ ہیکل سلیمانی نہیں بنا سکے. ان کے پاس نقشے تو ہیں, یعنی کہ نسل در نسل, اب وہ صحیح ہیں جھوٹے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا. اب یہ جو مسجد اقصی ہے یہ ایکچولی اس مسجد کا سمجھ لیں کہ ہاں ڈمی ہے, یا اس کی کیا ہوتی ہے, شبیہ ہے, اس جگہ پر ہے جو حضرت یعقوب کے ہاتھوں تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور جو یہ دوسرا ہے یہ قبۃ الصخرہ, یہاں وہ چٹان ہے, یہاں پر ایک چٹان ہے. اگر آپ کبھی اس کو قبۃ الصخرہ کا انٹرنل دیکھیں نا تو یہاں پر ایک بڑی نیچرل چٹان ہے, چٹان کے ایک چبوترا سا ہے. یہ وہ چبوترا ہے جس کے اوپر بنی اسرائیل کے جو بھی نبی گزرے, حضرت داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور لوگ بھی, یہ لوگ وہاں پر بیٹھتے تھے اور خطبات دیتے تھے. ٹھیک ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام بھی, اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام بھی, موسیٰ علیہ السلام نے, کیونکہ ان کو موقع نہیں ملا, وہاں آئے نہیں. تو پھر داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, ان کے بعد کے نبی, اور پھر بڑے بڑے علماء. وہ نیچرل ایک ممبر تھا, یعنی کہ وہ چبوترا بنا ہوا تھا اور آگے کھلی جگہ تھی, تو ظاہر ہے ان کا حرم تھا, وہ جمع ہوتے تھے. تو جو بولنے والا مقرر ہوتا تھا, نبی ہو عالم ہو, وہ اس چبوترے پر بیٹھ جاتا تھا. وہ بنا بنایا جو ہے, ہاں تخت ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو, بنا بنایا تخت ہے, بنا بنایا جو ہے ممبر ہے, تو اس کے اوپر بیٹھ کر وہ ڈیلیور کر دیتے تھے, اسی پر وہ قربانی دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہی وہ چبوترا ہے جس پر زکریا علیہ السلام کو باندھ کر شہید بھی کر دیا گیا تھا. تو بہرحال یہ ان کی مذہبی پھر رسومات بھی یہی ہوتی تھی, اور سیاسی بھی بڑے بڑے کام یہیں پر ہوتے تھے, ان کی مرکزیت کی جگہ بن گیا تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لائے ہیں, تو جو براق باندھا تھا وہ ویلنگ وال کے ساتھ باندھا تھا, اسی لیے اسے ہم ہائت البراق کہتے ہیں, ہم مسلمان. اور یہودی اسے دیوار گریا کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک دیوار, وہ جو سیکرڈ انہوں نے تعمیر کی تھی نا جسے ٹائٹس نے تباہ کیا, اس میں وہ ایک دیوار بچ گئی. تو یہ اسے لپٹ لپٹ کر روتے ہیں غم میں اپنے حرم کے, کہ بھئی ہمارا حرم نہیں بنا. ٹھیک ہے, غم میں ان کا روئے, وہ اس میں روتے ہیں, اور وہ ان کی یادگار ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ جو ایک ویڈیو اکثر آتی ہے نا, کہ وہ جو ہوا میں لیویٹیٹ کیا ہوا پتھر ہے, اور کہتے ہیں جس پر براق باندھا تھا. نہیں جی, براق ویلنگ وال پر باندھا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے بالکل کہانی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. نہیں وہ نہیں بالکل نہیں کرتے, نہیں اس کی تعمیرات ہوئی ہیں, اس کو اموی خلافہ نے بھی اس کو بہتر کرایا, اس پر کافی کام ہوا. لیکن یہ ہے کہ اس کو بالکل ایگزیکٹلی چینج نہیں کرتے, وہ اس کو رینوویٹ کر دیتے ہیں, جو پتھر گرتے ہیں ان کو لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا تبرک ہے نا, تبرک ہے, تو وہ اس کو ایز اٹ از رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا اس کو چینج نہیں کرتے. ٹھیک ہے, مسئلہ ہے ان کا ذاتی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو پڑھائی نماز انبیاء کرام کو, وہ جو ہے نا وہاں پر ہوا, یہ ڈوم آف دا روک جہاں بنا ہوا ہے, وہ جو چبوترا تھا وہیں پر نبی ملتے تھے نا, تو وہیں پر ہوا تھا یہ واقعہ. اب چونکہ وہ پورا احاطہ ہی جو ہے وہ مسجد اقصی کہلاتا ہے یا بیت المقدس کہلاتا ہے, تو وہ ہم عرف عام میں کہتے ہیں مسجد اقصی, اور ہم سمجھتے کہ وہ خاص کمرے میں پڑھایا, اس کمرے میں اتنے نبی آ بھی نہیں سکتے تھے. ویسے خیر اس جگہ پر بھی نہیں آ سکتے تھے, وہ پھر اللہ نے گنجائش پیدا کر دی. بہرحال یہ تو ویسے میں نے کہہ دیا. تو وہاں پر پڑھائی, وہ جو چٹان تھی وہاں پر ممبر, اس ممبر پر, تو لہذا اس پر پھر اموی خلیفہ جو تھے عبد الملک, انہوں نے یہ ڈوم بنوایا. اموی گورنمنٹ جو شروع ہوئی ہے نا, ویسے تو حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوئی ہے اموی گورنمنٹ, مگر پھر یزید کا دور گزرا,
اور उसमें जब बड़ा मसला हो गया, फिर यजीद के बाद जो है रही तो उमवियों में ही, मगर जो है फैमिली चेंज हो गई। तो अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है वो हाकिम बने, और इन्होंने फिर, इनकी हुकूमत 685 से 705 रही है, तो इन्होंने फिर ये जो है ना, ये गोल्डन डोम जो है ये बनवाया। गोल्डन वाला ही। हाँ, इन्होंने बनवाया। फिर ये गिर गया था, फिर इसको दोबारा तामीर करवाया, अर्थक्वेक में ना, जिलजिले में गिर गया था, फिर से दोबारा, इसकी 3-4 तामीरें हो चुकी, वो तो फिर वक्त के साथ होती रहती। तो ये असल में 2 कमरे हैं जिसको खास मस्जिद अक्सा कहा जाता है, जिसको मंसूब किया जाता है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ। वो ग्रीनिश डोम है, और जो चिटान के मिंबर के ऊपर बना हुआ कमरा है, कुब्बतुस सखरा, कुब्बा कहते हैं गुंबद को, तो वो जो है गोल्डन वाला है। इसकी तामीर जो है वो उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक ने करवाई। मुझे कमरा दिखाते हैं हज़रत मरियम का, वो ठीक है? मैंने ये सही मरियम अंदाजे से बने हुए हैं। नहीं, वैसे कमरा तो नहीं, लेकिन हजरत मरियम का जो ये सारा सीन हुआ वो पुराने वाले गुंबद में था। ये पूरा कॉम्प्लेक्स था एक्चुअली। हाँ, अब जाहिर है अब उस कोई नक्शे पता पर तो ये बना हुआ जगह नहीं है। वही है, लेकिन ये हजरत मरियम का जब वाकया पेश आया ना, तो ये सेकंड टाइम था जब ये बना हुआ था हैकल सारा। उस वक्त के पूरा प्रॉपर बना हुआ था, रिहायशी कमरे भी थे, स्टूडेंट्स के भी, हाँ प्रॉपर बना हुआ था। जैसे आज हमारा हरमे मक्का का, हरमे मदीना का कंपाउंड है, बच्चों के रहने के कमरे भी हैं, टीचर्स के रिहायशी एरियाज भी हैं, सारा कुछ बना हुआ था। बेसमेंट में पूरी दुनिया दिखाते हैं अंदर के। हाँ जी बिल्कुल, तो वो सारा कुछ वहां पर बना हुआ था, और जो है उसकी वजह से इनका ठाठ बाट था, और सब कुछ चल रहा था, इनका सबसे बड़ा मरकज था। तो उसमें हजरत मरियम बिल्कुल इसी अहाते के अंदर ये सब वाकयात पेश आए हैं, मगर एग्जैक्टली वो रूम कौन सा था ये जानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि तबाह हो गया ना। सेकंड टाइम इसकी तबाही है। पहली तबाही के बाद ये दूसरी तामीरी थी। फिर जो टाइटस रोमी था, ये रोमी हुकूमत के अंदर थे ना, तो रोमी हुकूमत आपको पता है बुत परस्ती, फिर बाद में ईसाई हो गई थी। तो पहले तो इनकी बड़ी साजबाज रही उनके साथ, फिर इन्होंने वही कुछ किया जो इन्होंने बाद में इन्होंने औरों के साथ किया, जिनकी फितरत, ऐसा ही कहा आपने, लूट मार और इनके जराए के ऊपर कब्जे। तो फिर टाइटस जो था ना, एक तो वो वैसे क्रिश्चियन हो गया था, ऊपर से इनकी हरकतें, उसने फिर जो इनको खदेड़ा है, और गुस्से में फिर उसने सब कुछ नजरे आतिश कर दी। तो बात ये है कि वो फिर सब कुछ खत्म हो गया। अब ये लोग जो कहते हैं ना कि ये हजरत मरियम का कमरा, ये इन लोगों के पास जो थोड़े बहुत आधे अधूरे नक्शे हैं ना, उनकी बुनियादों पर कहते हैं। अब सच झूठ अल्लाह जानता है। हाँ ये जरूर है कि इस कंपाउंड के अंदर ही पेश आया था सब कुछ। तो हमारा जो झगड़ा या बहस या लड़ाई है, वो सिर्फ उस एक गुंबद के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा हरम का अहाता हमारा हरम है, ये हरम शरीफ है, तो हमें तो हरम पूरा चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा ये जो बहुत बहस होती है, ये मैंने कहा मैं आपसे अर्ज कर दूं। ये बात भी आपको समझ आ गई कि इसकी जो तामीर है असल में याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों हुई थी, और उनके जरिए ही ये हरम डिफाइन भी हुआ था कि इसकी हदूद कितनी कितनी है। बाकी फिर इस हरम की हदूद के अंदर जो भी तामीर होती रहेगी वो हरम के अंदर आ जाए। तो अल्लाह रब्बे करीम हम पर आसानी फरमाए, आमीन। अभी बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि फलस्तीनी जो है वो फतह कर लेंगे। मैं समझती हूँ ऐसा नहीं है। हाँ, अभी इसराइल ने क्या कहा है सुना है आपने? इसराइल ने कहा है हमें अब कोई ट्रीटी व्रीटी नहीं चाहिए, अब हम ये रहा सहा हिस्सा भी वापस लेंगे इनसे, क्योंकि जब तक एक हुकूमत नहीं होगी अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। लॉजिकली वो ठीक कह रहे हैं ना, लॉजिकली ठीक कह रहे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत कह रहे हैं, लेकिन लॉजिकली वो ठीक कह रहे हैं। और उन्हें भी तो पूरा चाहिए ना, उन्हें भी तो पूरा चाहिए। अभी आप ये उम्मीद ना रखें कि ये फलस्तीन को हम छुड़ा सकते हैं, हमारी औकात नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी हमारे हाथ से फलस्तीन पूरा जाएगा, अभी हमारे हाथ से मिस्र का हिस्सा जाएगा जो गजा की पट्टी से जुड़ा हुआ है ना, वहीं से ही शुरू होना है। अभी हमारे हाथ से इसराइल की वजह से फलस्तीन का जो बचा खुचा हिस्सा है, गजा की पट्टी वगैरह, वो भी निकल जाना है। अब जाता है, कुछ सालों बाद जाता है, चला जाएगा। मिस्र का भी एक बड़ा हिस्सा निकल जाएगा जो गजा के साथ जुड़ा हुआ है। उर्दन का बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से चला जाएगा। हमारे हाथ से जो है शाम का बड़ा हिस्सा चला जाएगा। हमारे हाथ से इराक का बड़ा हिस्सा निकल जाएगा। हमारे हाथ से जनूबी अरब सारा निकल जाना।
इसमें है ना अरबों की तबाही। बेफिक्र हो जाए, ये अभी हमें सहना पड़ेगा। वजह ये नहीं है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो होगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे करतूत ही बताए। इस स्टेज के ऊपर आकर सऊदिया जो सबसे पावरफुल मुल्क है वो सुलह के लिए अड्डियां गोडे रगड़ रहा है, तो वहां पर होना क्या है? और ये किसी के दोस्त हुए हैं? वो गालिब कहता है ना कि फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों। यहूदियों का जो दोस्त बन जाए उसकी तबाही को यहूदी काफी है, उसको तबाह करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अभी हमारे हाथ से अरब का एक बड़ा हिस्सा निकल जाना, जिसको आप सऊदी अरब कहते हैं, हिजाज कहते हैं, इसका बड़ा हिस्सा हमारे हाथ से निकल जाना, और अरबों को शदीद खाना जंगी का सामना करना है। हो सकता है इसी जंग से आगाज हो जाए, अल्लाह नोज, ये तो उसको पता है, लेकिन अरबों में बहुत बड़ी खाना जंगी होगी। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हमारी और इसराइल की जंग से पहले होगा, यानी कि जो फाइनल जंगे हैं इमाम महदी के आने से पहले हो जाना है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी शदीद जंग होगी अरबों में, ऐसी शदीद जंग होगी अरबों में कि अगर एक परिंदा उड़ेगा तो थक कर बेजान होकर गिर जाएगा, मगर गिरेगा फिर भी लाशों पर, कि उसको जमीन पर उतरने की जगह नहीं मिलेगी। इतनी इतनी खुरेजी होगी। और आपने फरमाया इतनी खुरेजी होगी उस जंग में कि अगर किसी के 100 बेटे होंगे तो 99 मारे जाएंगे। ये दिन अरबों को देखना पड़े, ये इनकी अयाशियों का बदला है जो नहीं मिलेगा, और हमारे हाथ से बड़ा हिस्सा निकल जाएगा हमारी रियासतों। जो भी आप कह रहे हो ना निकल गया, अभी नहीं निकला, अभी कुछ भी नहीं निकला। हुकूमत अभी हमारी ही है। शाम पर, इराक पर क्या कब्जा कर लिया उन्होंने? कब्जा कोई भी नहीं किया, सिर्फ उनको तबाह करके निकल गया। अभी तो सिर्फ तेल लेने आए थे, उन्होंने तेल की वो डाले हैं पाइप, शाम से अमेरिका जा रहे, इराक से अमेरिका जा रहे हैं, और हमारे दानिशवराने कौम पानी से गाड़ी चला रहे, और उसके ऊपर महीना महीना बैठकर टॉक शोज भी कर रहे हैं। लानतुल्लाहु अलल काज़िबीन, लानतुल्लाहु अलल काज़िबीन। मैंने उस वक्त भी सिर्फ इतनी सी बात की, उस वक्त इराक अमेरिका जंग चल रही थी ना, तो मैंने कहा कि अजीज आए हुए थे, तो वो कहने लगे कि ये देखें क्या कह रहे हैं चाचू, मेरे मियाँ को कहने लगे। मैंने कहा बेटे मेरी बात सुनो, मुझे साइंस का नहीं पता, लेकिन मैंने कहा मुझे इतना पता है कि अगर पानी से गाड़ी चल सकती तो अमेरिका का दिमाग खराब है जाके इराक पर हमला करता। तो कहने लगा आपने तो बात ही खत्म कर दी। मैंने कहा नहीं, ये बात सबको समझ आती है, हम वैसे चूचे बने हुए नाक में नवाला डालना चाहते हैं, हम नाक में नवाला, हम वो कहते हैं ना चूचे बनना चाहते हैं। तो भाई चूचा कोई भी नहीं है, नाकिच नवाला कोई भी नहीं बनता। उन्होंने इराक और शाम पर कब्जा किया, तब तक वहां पर बैठे रहे जब तक उनकी पाइपलाइनें पड़नी थी। जब पाइपलाइनें पड़ गई हैं वो अपने घर वापस चले गए। आप क्या कहते हैं? अफगानिस्तान छोड़ा उन्होंने, अफगानिस्तान मोजजा हो गया, अफगानी जीत गए। उन्होंने अपना काम पूरा किया, जब तक उन्होंने बैठना था बैठे, जब उनका काम पूरा हुआ तबाह किए हुए अफगानिस्तान को छोड़कर दफा हो गए। मत ऐसे खुशफहमियों में रहा करें, अभी हालात हमारे खिलाफ है, इंशाल्लाह टेबल विल टर्न। मैं आपसे संजीदगी और जिम्मेदारी से कहती हूँ, यही ग्रेटर इजराइल, उनका जो नक्शा है कभी उठाकर देखो, नेट है आपके पास, सर्च क्यों नहीं करते? खोले ना ग्रेटर इजराइल का नक्शा, आप देखें आपकी आधी अरब दुनिया ग्रेटर इजराइल का हिस्सा। वो सही कहते हैं, रोमन एम्पायर के अंदर जो फलस्तीन है वो इन सारे हिस्सों पर मुश्तमिल था। वो तो फिर जब रोमन एम्पायर खत्म हुई, मुसलमानों ने खत्म किया, मुसलमानों ने इलाके फतह किए, उनसे हासिल किए, बहुत कुछ हुआ, सियासी चेंजेस हुए। वो उस फलस्तीन को इसराइल बनाना चाहते, उसको कहते हैं द ग्रेटर इसराइल। यही ग्रेटर इसराइल इनका ग्रेटर ग्रेवयार्ड बने, लेकिन उसके लिए भी अभी तो छित्तर हमें पड़ने वाले हैं, क्योंकि छित्तर खाने के लायक हम तो कहते हैं जी वो असल इस दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है, जितना जुल्म हो रहा है, उसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। इस वक्त दुनिया में जहां नाइंसाफी हो रही है, जहां इज्जतों से खेला जा रहा है, जहां बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, जहां इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, जहां अल्लाह के दीन को बर्बाद किया जा रहा है, उसका सिर्फ एक जिम्मेदार है, वो है मुसलमान उम्मा। क्योंकि दीन हमारे पास है, हक हमारे पास है, ताकत हमारे पास है, तादाद हमारे पास है, अल्लाह हमारे साथ है, और हम बैठकर किसी मसीहा का इंतजार करते हैं। तो दुनिया की हर खराबी का जिम्मा हमारा है, और इसका जवाब हमें बहुत शिद्दत से अल्लाह को देना पड़ेगा। तो इस पर अपना काम करें, दुआ और आवाज उठाएं, बात पहुंचाए, जहां तक पहुंचा सके पहुंचाए।
باقی فوجی کارروائی کیوں نہیں کی, سیاسی پلیٹ فارم پر جا کر کیوں نہیں لڑے؟ یہ آپ کے سارے نمائندے قیامت کے دن ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہونا. جس طرح ٹرانسجینڈر لا پاس ہوا نا, تو ایک عالم صاحب, نام مجھے ان لوگوں کے نہیں آتے, تو وزارت مذہبی امور کے ایک ممبر کو گھیر لیا لڑکوں نے, سوشل میڈیا کے بچے تھے, تو انہوں نے کہا کہ سر یہ لا پاس ہوا تو آپ نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ وہ کہنے لگی اصل میں بیٹے بات یہ ہے کہ یہ انگریزی میں تھا تو مجھے پڑھنی نہیں آتی. لعنت اللہ علی الکاذبین. 2014 میں پیش ہو کر 2022 میں پاس ہوا ہے, تسی ستے ہوئے سو, تسی ٹرانسلیٹر تو ٹرانسلیٹ کرا لیں گے, گوگل ٹرانسلیٹر سے کرا لیتے. ابھی میں وہ کورین فیملی, بالکل بیٹے یہ ایکسکیوز بچہ نہیں مانے گا, بچہ نہیں مانے گا. اللہ کے سامنے کہو گے جا کر, اللہ جی وہ لکھا ہوا انگلش میں تھا تو مجھے انگلش نہیں آتی, اور پھر اللہ سکھانا, پھر اللہ نے عربی میں جواب دلوانے. اللہ نے کہنا تینوں عربی بھی نہیں آتی سی, 50 فٹ تھلے 10 فٹ تھلے زمین دے آ کے آ گئی نا. یہ بہانے دیکھیں, شرم نہیں آتی, شرم نہیں آتی. آپ کو جب دوائی لکھی ہوئی دیتا ہے ڈاکٹر, انگلش میں سمجھ آ جاتی ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, چھوٹے چھوٹے بیچارے معصوم عالم بول رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے مولوی بیچارے. میں بھی بات تو کر رہی تھی کہ ان کی بات بہت بے وقوفانہ ہے, لیکن جذبہ سچا ہے. سادے بیچارے پڑھے ہوئے نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے بندے جو بڑے بڑے مولوی ہیں, بڑے بڑے عالم ہیں, جن کے لاکھوں فالوورز ہیں, کتنے سارے کتنے 80 لاکھ علماء کے وارث اور نمائندے فضل الرحمان صاحب بولے بھی تو کیا بولے. حماس والوں سے درخواست ہے کہ اسرائیلی بہن بھائیوں کے معاملے میں انسانی حقوق کا خیال رکھیں. بولے بھی تو کیا بولے. یہ 80 لاکھ علماء کے وارث ہے. جیسے اب تک تو ظلم فلسطینی کرتے آ رہے ہیں 76 سال سے, تو اس امت میں اس وقت صورت اس کیفیت کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں قحط الرجال. قحط تو سمجھتے ہیں نا, قحط پڑھنا, آپ قحط کہتے ہیں نا, کاف پر زبر ہوتا ہے قحط, اور رجل بندے کو کہتے ہیں, رجال جمع ہے. قحط الرجال انسانوں کا قحط ہے. نہ عالم ہے سپوکس پرسن ہمارے پاس, نہ ہمارے پاس حاکم ہے سپوکس پرسن, نہ ہمارے پاس فوجی جنرل سپوکس پرسن ہے یا انویڈ کرنے والا ہے. انفارچونیٹلی ہر محکمے میں, ہر جگہ پر ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی ہے. اصل لیڈرشپ ہمارے پاس ہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس وقت ہمارے پاس فزیکلی لیڈرز نہیں, نہ اہل لوگ ہیں, اور جو اہل ہیں ان بیچاروں کو کوئی رستہ نہیں دے رہے, وہ پھنسے پڑے ہیں. تو اس وقت میں کثرت سے دعا کریں, اور پاکستان کے لیے بھی بہت دعا کریں, ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں آپ کو ویسے فکر کرنی ہے لیکن غم نہیں کرنا. ہم لوگ فنڈ دے چکے, ہم فوج اسٹیبلش کر چکے, ہم سب کچھ کر چکے. اب یہ والے کام فوج کو کرنے ہیں, یہ کام انتظامیہ کو, حکومت کو کرنے ہیں. یہ جو اتنے پیسے لے کر بیٹھے ہیں, ہاں جب حکومت اناؤنس کرے گی نا کہ بیٹے بھیجو والنٹیئر کرنے کے لیے, تب میں خود آپ کو کہوں گی بھیجو. میں اپنے بیٹے کو بھی کہوں گی نکلو جاؤ, اللہ مالک ہے سب کا, لیکن یہ تب ہو. اس طرح نہیں اپنے بیٹے بھیجنے, آپ کو کیا پتا لے جا کر وہ بندوا مزدور بنا کر بیچ دے. یہ سب فراڈ ہوتے ہیں, سب فراڈ ہوتے ہیں. دعاؤں میں ہم قنوت نازلہ اور یہ اللہم اقسم لنا یہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی بار قنوت نازلہ پڑھی تھی, جب بحر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا. بارک اللہ فیک, اللہ آپ کا علم آپ کو مبارک کرے. جب بحر معونہ کا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وحیدہ فجر کی نماز میں ان کو قنوت نازلہ پڑھتے رہتے. پھر آل عمران کی آیات آ گئی تھی کہ اللہ پاک نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ ظالم ہے مگر ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. پھر آپ نے چھوڑ دیا, دوبارہ کبھی دعائے قنوت نازلہ نہیں. تو اب بڑا نیٹ پہ آ رہا ہے, پڑھ لیں, سنت دعا ہے, کوئی حرج نہیں, ٹھیک ہے. رائے اس کے بارے میں علماء کی 2 ہیں. ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کبھی نہیں پڑھی, تو بہتر ہے دعا ہی کریں. لیکن دوسری رائے یہ بھی ہے کہ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں دشمنوں کی تباہی کے لیے, تو آپ کی مرضی ہے.
हाँ, ओहद के मौके पर सॉरी खंदक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी दुआ भी सिखाई थी, बताएं। हाँ हाँ कोशिश करें। अल्लाह मुस्तुर औरातीना व आमिर रवातीना, चलते फिरते ये भी पढ़ ले। कनूते नाजला तो अब याद करेंगे तभी पढ़ेंगे, और फिर कनूते नाजला को कनूते नाजला ही के तरीके से पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के फर्जों की दूसरी रकत में रुकू से उठ के पढ़ते थे, फिर आप उसको अपनी मर्जी से नहीं पढ़ेंगे ना, उसी तरह पढ़ेंगे। बाकी ये है कि इशा के वितरों में आप वितर में आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, वितर में आप दुआ मांग सकते हैं कोई भी। तो जो अल्लाह महदनी फीमन हदईत है वो तो सुन्नत है, वो तो पढ़ ली, उसके बाद आप जो जो पढ़ लें, आप दुआए कनूते नाज़ला भी पढ़ लें, ठीक है। का हिस्सा है, ध्यान में नहीं आ रहा। हाँ वही मैं कह रही हूँ, किसी दुआ का हिस्सा है। कौन सी चीज? ये जो भी आपने बताइए ना नहीं, अल्लाह मुस्तुर औरातिना व आमिर रवातिना अलहदा मुस्तकिल दुआ है। ये खंदक के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ही सिखाई थी जंग और परेशानी में पढ़ने के लिए, वो अलहदा दुआ में ये अलहदा आई है, ठीक है। ये किसी दुआ का हिस्सा नहीं है, ये मुकम्मल इतनी दुआ है। सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम अलैहिम मजमाइन का जब खंदक पर मुहासरा तवील हो गया और ये अफवाह भी उड़ा दी गई कि यहूदी जो है वो पीछे से हमला करने वाले हैं, तो जाहिर बात है दिल तो परेशान हुए, सबके बीवी बच्चे थे पीछे। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल बड़ा परेशान है, कोई ऐसी दुआ सिखा दे हमारे दिल को सुकून हो जाए। तो आपने कहा तुम लोग पढ़ो अल्लाह मुस्तुर औरातिना व आमिर रवातिना, अल्लाह हमारे जो ऐब हैं उनको तो ढांप ले और हमारे झगड़ों में हमें अमन दे दे। तो ये मुस्तकिल दुआ है और ये जंग के लिए, ये खास जंग के खौफ के लिए। तो अभी आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं ये उनके लिए भी, क्योंकि खाना जंगी का माहौल है। अगर ये लोग इन्हीं हालात पर लगे रहेंगे, देखिए ये बहुत बड़ी साजिश है जिसे आप समझ नहीं रहे, और वो साजिश ये है कि तालीमी इदारों में ये इनको कर देंगे प्राइवेटाइज, आम बंदे का बच्चा नहीं पढ़ सकेगा, क्या करेगा, वेला फिरेगा, नौकरियां खत्म, सब कुछ खत्म, और 4-5 साल में आप देखेंगे चोरी चकारी खाना जंगी शुरू हो जाएगी, लूट मार शुरू हो जाएगी, बदमनी हो जाएगी। उस सब का हल क्या है हमारे पास इस वक्त? अमल के साथ साथ दुआ करना, और दुआ में अल्लाह मुस्तूर औरातिना व आमिर रवातिना, अल्लाह हमें अमन दे दे, हमारे झगड़ों में हमें रास्ता दे दे। तो इंशाल्लाह ये दुआ आपको मदद देगी। तो दुआ करें, बहुत दुआ करें, और देखिए अरबी दुआ जरूर करें, लेकिन रो रो कर अपनी जुबान में दुआ मांगे, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। तो तड़प कर दुआ मांगे, पंजाबी में मांगे, उर्दू में मांगे, फारसी में मांगे, जो जुबान आपको अच्छी लगती है, रो रो कर मांगे और अल्लाह से मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बे करीम हमें रास्ता अता फरमाएंगे। तो आज असल में मैंने फलस्तीन ही पर बात करनी है। ये जो साजिश है ना स्कूल करने की, ये वही उसी लेवल पे जैसे फ्रॉम था उससे बनाई से जी गुलाम बनाया था, को गुलाम बनाने की साजिश है कि ना पढ़े लिखे ना पूछे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे पास एक ही एसेट है और वो एसेट है यूथ, और यूथ के एसेट को तराशने के लिए सिर्फ एक चीज चलती है, वो है तालीम। तालीम रोक दो तो सारे जाहिल अनपढ़ क्या करेंगे? हाँ जी, बस उनको गुलाम बना लो, गुलाम बना लो। ये सारी इनकी बड़े लेवल पे साजिश है। और इसमें आप देखें अल्टीमेट नतीजा क्या निकलेगा? कोई काम सिखलाए बच्चा, गरीब बंदा यही करेगा ना, और वो अपने बच्चे को काम सिखा लेगा, फिर ये स्किल्ड वर्कर्स की जॉब्स निकालेंगे और वहां पर सस्ते पैसों पे बुलाएंगे, यहाँ लोगों का घर चल जाएगा और अनदेखी बेड़ियां होंगी, अनदेखी बेड़ियां होंगी, वो वहां पर गुलाम बनकर रहेंगे। सेकंड बिल्कुल ये बहुत बड़ी साजिश है, और ये इनकी तो औकात भी नहीं है निजकारी का लफ्ज इस्तेमाल करने की, इनको तो आकाओं से हुक्म मिला है। बात वही है, डोरियां तो कहीं और से हिलती हैं। हाँ जी, इनके अंदर तो साजिश करने की भी दिमाग नहीं है, ये भी दिमाग नहीं है। जी रूहान, आप क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी मैं ना वो सॉरी तो बीच में इंटरप्ट करने के लिए, तो जब दुआ की बात हो रही थी ना, हाँ दुआ की बात हो रही थी, पहले भी आपने बहुत अच्छा बताया वो दुआ के बारे में कि हम दुआ कर सकते हैं। तो मैंने अभी जितना अभी तक थोड़ा गौर फिक्र किया है, उसमें मुझे तो यही समझ में आता है कि हदीस है ना कि मुसलमान बहुत सारे होंगे लेकिन उनके दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही थी कि हमें एज एन उम्मत जो है ना, हमें इस वक्त दुआ ये भी करने की जरूरत है कि अल्लाह हमारे दिलों से वहन निकाल दे, बुज़दिली निकाल दे, क्योंकि बेसिक मसला हमारा यही है। हाँ, तो
पाकिस्तानियों ये को एक तो बहुत जरूरत है। माशाल्लाह। तो हमें अपनी दुआओं में ये भी शामिल करना चाहिए। मैं बस ये पॉइंट एक बीच में डालना चाह रही थी कि जब भी दुआ करें तो ये जरूर दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिलों से वहन निकाल दे। बहुत अच्छी बात कही है रूहान ने। वहन कहते हैं कमजोरी को। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये फरमाया कि मुसलमानों की आखिर ज़माने में तादाद बहुत होगी मगर वहन आ जाएगा, इनकी कमजोरी। तो कमजोरी है ना, देखें इसराइली फौजों का मैंने पहले ही अर्ज किया क्या सामना करना है, अपनी पुलिस के डंडे दुखा नहीं सकते। तो लिहाजा हमें बिल्कुल ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के दिलों से वहन यानी कि कमजोरी निकाल दे। आमीन। चलिए फिर आज की बात खत्म करते हैं। अल्लाह हमें हमारा किरदार अदा करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन। और फलक बच्चे एक और भी वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। जी बिल्कुल। हर नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 मर्तबा करते थे, ये सही मैं कंफर्म करना चाह रही थी। 3 मर्तबा। 3 मर्तबा 3 मर्तबा हर हर फर्ज नमाज के बाद। हर फर्ज नमाज के बाद। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।